That is our promotions. That is CAS. CAS stands for Career Advancement Scheme, right? Now, the latest development is UGC regulation dated 18th July 2018, ratified by Maharashtra government on 8th March 2019, and amendments therein by GR dated 10th May 2019. So as on today, this one and this guideline are very important for our CAS, right? As far as Maharashtra government is concerned, for other states, the dates may be different. I know there are some people from south states, so you please check that date. Okay. Now, what career advancement scheme means? Career advancement procedure adopted by the university as per UGC regulation dated 30th June 2010 and ratified by the Maharashtra government order dated 15th February 2011. What do you mean by CAS? CAS means vertical movement in designation and pay scale on the basis of following criteria. What are the criteria for CAS? The first criteria is number of years of service, and second one is academic performance indicators, that API, including the training courses like refresher courses, short term courses, and orientation courses. Now, these two are the basic criteria for the promotions. See, this API was introduced, and that is actually the point based system for your research activities. And we will go ahead, see how the scales are changed, okay? And in the existing pay scales and revised pay scales, we will see. See, previously there was AGP system. So the first level, that is assistant professor in university or in college, that is now identified as level 10. Okay. And you can see the scales were 15600 to 39100 with AGP 6000. Now in revised pay scales means now it is 57,700 is the basic. Then first promotion, that is we may call as senior grade promotion, that is assistant professor to senior assistant professor. It is level 11, and the AGP has been increased over here by 1000, that is 7000. And now in revised pay scales, the basic will be 68,900. Then second promotion, that is selection grade, we may call it, that is assistant professor to assistant professor senior selection grade, that is now identified as level 12 with AGP 8000, and in revised scale the basic will be 79,800. Then 13A promotion is very important, and that is the designation is changed over here. From assistant professor you will become associate professor, and previously AGP was 9000, and here you can see the pay band was also changed. Okay, 37,400, 67,000. Okay, then it is in revised pay scale, it is the basic is 1,31,400. And next promotion, that is level 14, that is professor. Again here the designation will be changed. And previously it was with AGP in associate professor band 10,000, and now for professor the basic is 1,44,200. And level 15, that is only for university professors, that is senior professor promotion is there with AGP 12,000, and here you can see revised pay scale, the basic will be 1,82,200. Okay, so this is actually the levels.
pay scales in 6th pay and now in 7th pay according to 2018 July UGC directions, right? Now, number of years of service. This is one of the criteria. See here, from stage 1 to stage 3, it will be based on your passing NET, SET, PhDs and MPhil. Okay. So, if you are PhD, then number of years required for your promotion will be 4 years. If you are MPhil, 5 years. If you are only NET, then 6 years. If you are NET plus PhD, then also it will be 4 years. Okay. Then the second promotion from stage 2 to stage 3, level 12 now. Number of years of service required will be 5. After this 4, 5 and 6. Okay. Then after that 11 years of your service, the next promotion will be after 3 years, that is after 14 years, associate professor, level 13A you will get. Then for professor also another 3 years, that is 17 years of your service from stage 4 to stage 5, and that is level 13A to level 14. Okay, and that of stage 6 promotion, that is L15, that is only for university teachers and it is senior professor. Okay, so these many number of years of services will be required at each of the promotional stage. Now, see, when API was introduced by UGC in 2010, okay, there were three categories. The first one is teaching, learning, and evaluation related activities. Category 2 was co-curricular extension and professional development related activities. And category 3 was research and academic contributions. See, now, since its introduction in 2010, there are different criteria for university teachers and college teachers. Because university teachers, more research activities um, are expected, okay, from universities. So the criteria and the marks are different for college teachers and university teachers. Now, till date, कितने कितने अमेंडमेंट्स आए, कितने कितने रेगुलेशंस आए, वो मैंने यहाँ पे दी हूँ, तो आपको क्लियर पिक्चर आएगा. See, original regulation of UGC dated 30th June 2010, and as far as Maharashtra government is concerned, Maharashtra government accepted this regulation on 15 February 2011. Then first amendment was there dated 16th March 2011, but it was not accepted by government of Maharashtra. Then second amendment dated 13th June 2013. It was accepted by government of Maharashtra on 15th October 2016. Third amendment dated 4th May 2010. It was accepted by the government of Maharashtra on 4th March 2017. Okay. Then fourth amendment dated 11 July 2016, and it was accepted by the government of Maharashtra on 4th March 2017. Then now we have the revised regulation 2018 dated 18 July 2018, and it is accepted by government of Maharashtra on 8th March 2019 with amendment dated 10th May 2019. So if you are freshers, okay, that is your service is 2 years or 3 years completed or 4 years completed, okay, then this direction will be there. According to this direction, you should make your API. Now, you can see
This third amendment was appointment of lecturers and principals. So this third amendment was not for the promotions, you can see, or some rules and some guidelines given for the appointment of principals. And fourth amendment was very important actually, uh, and it was, as far as Maharashtra government is concerned, that was only for 1 year. Okay, that is 2017 and 18. आप लोगों में से किसी के प्रमोशंस जो है उसमें 17-18 ईयर आता है क्या? कैन एनीबडी टेल मी? Yes, ma'am. हेलो, Yes, ma'am. मेरे इसमें आता है, ma'am. आता है ना? It was in first placement. अच्छा, आपका फर्स्ट प्लेसमेंट हाँ, कब आ रहा है? आपका फर्स्ट प्लेसमेंट? ma'am, first placement हो गया है मेरा. It was there, हाँ, 17-18, yeah. So half portion I have done according to earlier regulation, and या half या portion is like that. या So it सो depends और on us which you want to apply. एनीबडी एल्स? किसके इसमें आ रहा है 17-18? नहीं है. ओके, हेलो, मैं मैडम एक्सेप्ट फर्स्ट कर, प्लेसमेंट मींस ड्यूरेशन के बीच में या ऑन दैट ईयर? नहीं नहीं, ड्यूरेशन के बीच में. मॅडम डिलेड झालं. मॅडम प्लेसमेंट जर डिलेड झालं असेल तर मग कसं काय? म्हणजे 16 मध्ये व्हायला पाहिजे तर मग 17 मध्ये झालं ड्यू टू रिफ्रेशर कोर्स लेट झाल्यामुळे. मग त्याचं त्याचं येईल का याच्यामध्ये? हो, येईल ना ते वर्ष. हा, 2017 मध्ये झालंय मग मॅडम माझं फर्स्ट प्लेसमेंट. फर्स्ट प्लेसमेंट 17 मध्ये झालंय. येस मग मॅम. झालेलं आहे ना ऑलरेडी? हो मॅडम, फर्स्ट प्लेसमेंट झालंय 17 मध्ये. झाले. मॅडम आता तुम्ही माझ्या पण 20 मध्ये झालं, 17-18 आलेला आहे विचार. 17-18 आलेले आहे. झालं तुमचं प्लेसमेंट? हो मॅडम झालं. अच्छा, कुणाचं फर्स्ट प्लेसमेंट किसी का ड्यू है जो डिलेड मॅडम है? मॅडम माझं हाँ आहे फर्स्ट प्लेसमेंट पुढच्या हाँ, वर्षी 24 मध्ये. पुढच्या वर्षी. हा, म्हणजे 2023 तुमच्या मध्ये. याच्यामध्ये 17-18 येतोय स्टार्टिंगला. मी नाही, 19 डिसेंबर 19 जॉईनिंग आहे माझं. 19. अच्छा, 19 म्हणजे तुम्हाला नवीन रेग्युलेशन्स हो लागणार. हो. ठीक आहे, ठीक आहे. मॅडम तिथं आम्हाला प्रपोजल कसा होता का 20 पर्यंत, 22 जुलै 2020 पर्यंत ओल्ड नुसार अप्लाय करता येत होता. हो, ते एक कट ऑफ डेट दिली होती त्यांनी. आणि हाँ त्या हाँ लोकांना कसं है कि त्या लोकांना एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर का जो प्रमोशन है वो उन लोगों के लिए फ्रॉम द ड्यू डेट था. वो मैं अभी बताती हूँ. अभी मुझे आइडिया आ गया कि आप लोग कौन सी फेज में हो. ठीक है. सो हम सिर्फ ये देखेंगे कि फोर्थ अमेंडमेंट जो लागू किया गया था वो केवल 1 साल के लिए महाराष्ट्र में था. यहाँ पे कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 को क्लब किया गया था. और जैसे हमने देखा कि कैटेगरी 1 टीचिंग लर्निंग, कैटेगरी 2 जो था वो था आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, और कैटेगरी 3 था रिसर्च. राइट. नाउ वी विल गो अहेड. हम थोड़ा कॉलेज टीचर्स के लिए पहले देखेंगे, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए थोड़ा बाद में देखेंगे कंपैरेटिवली क्या क्या डिफरेंट सिचुएशंस है. ओके. अभी देखिए 2018-19 तक पुरानी सिस्टम थी. राइट. अभी कैटेगरी 1, 2, 3 में हम देखते हैं कि कैसे कैसे पुरानी सिस्टम के हिसाब से ये था. देखिए कैटेगरी 1 में 75 पॉइंट्स चाहिए थे. कैटेगरी 2 1 to 2 पहले प्रमोशन के लिए, दूसरे के लिए भी 75, तीसरे के लिए भी 75, चौथे के लिए भी 75 चाहिए थे. और कैटेगरी 2 में 15 15 15 15 चाहिए थे. ओके. फॉर कॉलेज टीचर्स एक्चुअली पुराने सिस्टम्स में प्रोफेसर का प्रमोशन नहीं रहता था, एसोसिएट प्रोफेसर तक के ही प्रमोशन रहते थे. लेकिन अभी नई सिस्टम में उन्होंने प्रोफेसर का कॉलेज टीचर्स को भी दिया है. ओके. कॉलेज टीचर्स भी अभी प्रोफेसर की रैंक तक जा सकते हैं. और ये दोनों कैटेगरी को मिला के 100 100 100 पर ईयर होना चाहिए था.
मतलब कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 को उन्होंने क्लब किया था, और कैटेगरी 3 जो था वो 5 ईयर का प्रमोशन जो था उसको आपको 5 नहीं 4 5 6 ना, तो ये 3 सालों में, अगर नेट है तो 6 साल, एमफिल है तो 5 साल, पीएचडी है तो 4 साल, इसके हिसाब से आपको केवल 20 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स पर ईयर यहाँ पे लेने थे। ओके, देन दूसरे प्रमोशन के लिए आपको 50 पॉइंट्स लेने थे जो 5 साल का था, यानी 10 पर ईयर। और थर्ड प्रमोशन के लिए जो 3 साल का है उसके लिए 45 था, और ये 60 जो है वो फोर्थ प्रमोशन के लिए था। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रोविजन ऐसा था कि 1 साल आपका कोई रिसर्च नहीं हुआ है, आपने कोई पेपर नहीं लिखा है। ओके, तो आप दूसरे साल में उसको कवर अप कर सकते थे, दैट वाज द प्रोविजन। और आप देखेंगे कि पहला जो है प्रमोशन, ओके, वो स्क्रीनिंग कमेटी कर देती है, दूसरा स्क्रीनिंग कमेटी कर देती है, उसके लिए सिलेक्शन कमेटी नहीं आती, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए आपको सिलेक्शन कमेटी आती है। और आपका एपीआई वेरीफाई किया जाता है ये 2 प्रमोशंस के लिए, और यहाँ पे उन्होंने मार्किंग सिस्टम्स डाले हैं। सिलेक्शन कमेटी विल मार्क्स गिव यू द मार्क्स 20% for research, 60% for knowledge, 20% for interview. Here 30% for research, 20% for interview, and 50% for knowledge, right? Now, ये देखिए, ये जो पुराना वाला सिस्टम था, मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि अभी वो बाहर हो गया है। आई विल फोकस ऑन न्यू वन। तो इसमें जो है, इसमें आपको रिफ्रेशर कोर्सेज, जैसे एक ओरिएंटेशन, एक रिफ्रेशर कोर्स जो 2 और 3 वीक्स का है वो चलता था, कंपलसरी था। फॉर सेकेंड प्रमोशन 1 रिफ्रेशर कोर्स, मेथोडोलॉजी वर्कशॉप, ट्रेनिंग, टीचिंग लर्निंग, इवेल्युएशन प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 2 और 3 वीक्स का जरूरी था यहाँ पे। ओके, और एक चीज ध्यान में रखिए कि ये जो पर्टिकुलर चीज थी उसमें लाइब्रेरियंस के लिए 2 रिफ्रेशर थे, लेक्चरर्स के लिए 1 रिफ्रेशर था, ये चीज ध्यान में रखिए। स्टेज 3 to 4 जो था उसमें एक रिफ्रेशर कोर्स, मेथोडोलॉजी वर्कशॉप मिनिमम ऑफ 1 वीक का आपको करना था, राइट? अभी यहाँ पे भी आप देखते हो कि स्क्रीनिंग कमेटी, सिलेक्शन कमेटी। और यहाँ पे क्या था कि एसोसिएट प्रोफेसर को जो है प्रमोशन के लिए 3 पब्लिकेशंस इन एंटायर पीरियड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 फॉर एमफिल होल्डर एंड 1 फॉर पीएचडी होल्डर जरूरी होता था, 3 पब्लिकेशंस। और ये प्रोफेसर की ग्रेड के लिए 5 पब्लिकेशंस की आवश्यकता होती थी मिनिमम। ओके, और ये जो रिसर्च जो ये था आपके पॉइंट्स, वो कैसे कैसे बदलते गए मैं आपको बताती हूँ। जैसे रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड इन रेफरेड जर्नल्स तो 15 पॉइंट्स मिलते थे। नॉन रेफरेड बट हैविंग आईएसबीएन आईएसएसएन नंबर 10 पॉइंट्स मिलते थे। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स जो पूरा पेपर आपका छप के आया है उसके लिए 10 मार्क्स होते थे। ओके, अभी देखिए क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स, हाउ इट इज मेजर्ड, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। और एक चीज कि जॉइंट पेपर है आपका, जॉइंट ऑथरशिप है, तो फर्स्ट ऑथर को 60% मिलता था एंड रिमेनिंग 40% टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द रिमेनिंग ऑथर्स, ये सिस्टम था। नाउ लेट मी टेल यू actually how these points are given. Okay, see, the basic criteria of a journal publication is the journal must have ISSN number, that is International Standard Serial Number. Okay, that is the unique number assigned to a journal by authority. Okay, now second criteria was whether the journal is peer reviewed or not.
सी पीयर रिव्यू प्रोसेस इज ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है ब्लाइंड पीयर रिव्यू, दूसरा होता है डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू. ब्लाइंड पीयर रिव्यू मीन्स आपका आइडेंटिटी आपके पेपर में से निकाल दिया जाता है and they identify at least two reviewers from their database which are experts in your subject. Okay, which are expert in your subject, and they will send the paper, editorial board will send your papers to those two people, and they will give you the comments. They will also give their remarks whether the paper should be accepted, rejected, or needs revision. Okay, now the third criteria was impact factor. How many citations a single paper got? Based on the citations, the journal will calculate the impact factor of the journal. And points will be more for the journals having more impact factor. Okay. So, how the previous system worked. So, for the papers which are published in impact factor between 1 to 2, 10 more points were added to this 15. So that became 25. If the impact factor is between 2 to 5, then 15 more, that is 15 plus 15, that is 30. And if the impact factor is 5 to 10, then 25 marks more will be added. That is 25 plus 15, that is equal to 40. Okay. And of course, one more thing was there for conference proceedings. Either you should claim presentation marks or publication marks. Okay, that was the provision. But you cannot claim both the marks. Now, research publications like books and chapters in a book. See, this was decided according to the level of the publisher. If the publisher is of international level and he is following peer reviewed system, then 50 marks were there for a book. Okay, and 10 marks were there for the edited chapter in the edited book. If the level of publisher is national level, okay, then 25 for sole author and 5 for chapter in edited books. And if the local publishers, they have published your books, then 15 marks for solo author and 3 for chapter in edited books. Okay, again 60-40 system was there. So this was the previous system. See, research project completed or ongoing above 5 lakhs आपका उसका mobilization है तो 20 points मिलते थे. मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट 3 to 5 lakhs के बीच में 15 मिलते थे और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट 25,000 से 3 लाख के बीच में है तो 10 मिलते थे. राइट. कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट है तो मिनिमम 2 लाख रुपए का कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट होना चाहिए था तो 10 मार्क्स फॉर एवरी 2 lakhs आपको मिलते थे. ओके, अभी यहाँ पे देखेंगे आप रिसर्च गाइडेंस. एमफिल में ऑनगोइंग है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अवॉर्डेड थीसिस है आपका तो 3 मार्क्स मिलेंगे. रिसर्च गाइडेंस पीएचडी तो डिग्री अवॉर्डेड के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे आपके अंडर अगर पीएचडी अवार्ड होती है तो. और सबमिटेड स्टेज में है आपका तो 7 मार्क्स मिलते हैं. जस्ट अ सेकेंड. ओके, तो पीएचडी सबमिटेड के लिए 7 मार्क्स और पीएचडी अवॉर्डेड के लिए 10 मार्क्स मिलते थे. नाउ वी विल गो अहेड. ओके, देखिए 17 तक आपके रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए भी पॉइंट्स थे. जैसे 20 पॉइंट्स आपको रिफ्रेशर कोर्स के लिए मिलते थे, लेकिन एक प्रपोजल में ये कैटेगरी में
आपको मैक्सिमम 30 ही क्लेम करने थे। मतलब अगर आपने 2 रिफ्रेशर किए तो आपके 40 मार्क्स होते थे, लेकिन उसमें से 30 ही मार्क्स वो पकड़ते थे, राइट। एंड 1 वीक का अगर आप मेथोडोलॉजी का कोर्स करते थे तो आपको 10 मार्क मिलते थे। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना कि अभी ये भी आपको नहीं मिलेंगे। दीज आर नाउ नॉट कैलकुलेटेड इन योर APIs। आपको कोर्सेज करना है, दैट इज मैंडेटरी। उतने कोर्सेज आपको करना ही करना है, ओके। सो इफ यू आर प्रेजेंटिंग द पेपर्स इन कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 10 मिलते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए 7.5 मिलते थे, स्टेट के लिए 5 मिलते थे, और लोकल वर्कशॉप्स जो है उसके लिए 3 मार्क्स मिलते थे। अभी ये सिस्टम जो है, इनवाइटेड लेक्चर्स, प्रेजेंटेशन फॉर कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजिया, ये जो है इंटरनेशनल लेवल का है तो 10 पॉइंट्स, नेशनल के लिए 5 पॉइंट्स, स्टेट के लिए 3 पॉइंट्स, और यूनिवर्सिटी लेवल के लिए 2 पॉइंट्स मिलते थे आपको। तो दिस वाज द एक्चुअली द ओल्ड सिस्टम, ओके। अभी देखिए 2017-18 में जो 75 थे वो 80 हो गए, और यहाँ पे 75 और 70 हो गए। यहाँ पे 50 ही है, उसमें कोई चेंज नहीं। यहाँ पे भी 20, 50, 75 हो गए, यहाँ पे 60 थे, और यहाँ पे भी मार्क्स बढ़ गए, 100 हो गए। बाकी सब वैसे के वैसे। ये भी उन्होंने चेंज नहीं किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो रिक्वायर्ड होता था, ओके। 17-18 में एक ओरिएंटेशन, एक रिफ्रेशर, यहाँ पे भी एक रिफ्रेशर, यहाँ पे आपको एसोसिएट प्रोफेसर का जो प्रमोशन है तो उसके लिए एक रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप या शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ता था, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे भी 3 पब्लिकेशन जरूरी है, यहाँ पे भी 5 पब्लिकेशन जरूरी है। अभी देखिए जो यहाँ पे 15 मार्क्स थे, ओके, वो 25 कर दिए उन्होंने। और ये जो 2017-18 का अमेंडमेंट था, उसमें एक नया शब्द आया, रेफरेड जर्नल्स एज नोटिफाइड बाय द UGC। मीन्स इस साल में हर एक यूनिवर्सिटी ने क्या किया कि कुछ जर्नल्स जो है वो यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट कहते थे उसको, तो उसमें अगर आपका जर्नल में पेपर है तो आपको उस पेपर के लिए 25 मार्क्स मिलते थे। और जॉइंट ऑथरशिप है तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि 70-30% किया, मतलब फर्स्ट ऑथर के पॉइंट्स बढ़ा दिए उन्होंने, राइट। और आप देखेंगे यहाँ पे नॉन रेफरेड जर्नल एज नोटिफाइड बाय यूजीसी की जो अप्रूव्ड लिस्ट थी उसमें कुछ पीयर रिव्यूड जर्नल्स थे, कुछ पीयर रिव्यूड नहीं थे। जो पीयर रिव्यूड है यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट में उसको 25 मार्क्स देते थे, और जो पीयर रिव्यूड नहीं है लेकिन यूजीसी लिस्ट में है उसके लिए 10 मार्क्स मिलते थे। और ये जो 4th अमेंडमेंट जो था उसमें एक बहुत बड़ा सेटबैक हमारे टीचर्स को आया, दैट इज कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, जिसके लिए हमको इजीली मार्क्स मिल जाते थे, उसके लिए उन्होंने मार्क्स नील कर दिए। एक्चुअली ये उसमें बहुत बड़ा चीज था। उसके एक्सक्यूज बाद मी मैम, में, हाँ श्योर, एंड मैम ये जो बोलिए। 70% और 30% डिस्ट्रीब्यूशन है, कैन यू हाँ, इलैबोरेट फॉर 10 मार्क्स हाउ वी कैन गेट द मार्क्स 70-30? यस मैम। ओके। 70-30 मीन्स सपोज you are having 100 marks, okay, यस मैम। first author, total 100 marks you are getting for a publication, okay। हम वैसे ओके ही लेते हैं, 100 का ये बेस लेते हुए करते हैं, तो 70 मार्क्स फर्स्ट ऑथर को चले जाएगा, और रिमेनिंग, और अगर देखिए उसमें में उन्होंने क्या कहा है कि फर्स्ट एंड द करस्पॉन्डिंग ऑथर, और आप अगर गाइड हो तो 70-70 लेना है आपने, मीन स्टूडेंट के साथ में 70 और आपको लेना 70 है। दोनों को इक्वली मिलेंगे? हाँ, 70 फर्स्ट ऑथर को भी मिलेंगे, और करस्पॉन्डिंग ऑथर 70 को भी मिलेंगे, और जी, गाइड को भी मिलेंगे। ओके 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 लेकिन इसमें क्या है, इसमें द पेपर शुड बी बेस्ड ऑन थीसिस, राइट। ओके
बेस्ड ऑन जी थीसिस, और आपने वहां पे लिखना चाहिए रिसर्च सुपरवाइजर, रिसर्च स्टूडेंट, ये लिखना जरूरी है। ओके ओके वो अगर ओके नहीं लिखा आपने तो जी कमिटी विल नॉट गिव यू द मार्क्स। ऐसे इंसिडेंसेस हो गए, ओके राइट। लेकिन जी और जी तीसरा भी ऑथर है आपके पास में, तो वो 30 उसको मिलेंगे। अगर और दैट इज चौथा ऑथर है तो 30 के आधा हो जाएंगे, मतलब 15-15 मिलेंगे। 15 मिलेंगे ओके ओके। हाँ, ये तो पता चल गया। कोरस्पॉन्डिंग ऑथर को दोनों को 70 ही मिलेंगे। हो 70-70 ही मिलेंगे। ओके 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 मॅडम स्टेटमेंट तर सेम आहे मग 30-30 का नाही मिळणार जे बाकीचे ऑथर आहेत त्यांना? सी, द रिमेनिंग 30% टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, क्लियरली लिखा है उन्होंने। इथे पण लिहिले ना मॅडम वरती 70% पॉइंट्स डिस्ट्रीब्युटेड इक्वली. हाँ, इक्वली बिटवीन फर्स्ट एंड द करस्पॉन्डिंग ऑथर्स। देखिए, कभी कभी फर्स्ट ऑथर अलग रहता है, करस्पॉन्ड करने वाला ऑथर अलग रहता है। यहाँ पे पीएचडी सुपरवाइजर और आपका मेंटर मेंटी वाला काम है। यानी 70% देखिए, जिस तरह से देखिए हम यहाँ फर्स्ट पे एंड यहाँ करस्पॉन्डिंग को दे रहे हैं तो हाँ 30% भी हम ये जो बाकी जितने भी ऑथर्स रहेंगे को ऑथर्स तो हर एक को 30% यानी मिलना चाहिए ऐसे. सर, व्हेन यू टॉक अबाउट परसेंटेज तो टोटल कितना होना चाहिए? नहीं टोटल 100 होना चाहिए मैडम. 100 होना चाहिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्लियरली दिया है डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द करस्पॉन्डिंग ऑथर्स, मतलब 70-70। आप एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीज ध्यान में रखिए आप, अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हो और आपका गाइड दोनों पेपर लिखते हैं तो आपने 70-70% लेने चाहिए, ये नहीं चीज तो उन्होंने बोला है। टोटल लिमिटेड 100 नहीं होगा ना 30%। 170 हो जाएगा देखो, मैडम वो हाँ भी. हाँ, 170 हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं आपको कि बहुत सी जगह हम लोग जब कैस के लिए जाते हैं ना, तो ये 30% दूसरा ऑथर ले लेता है, ठीक है। व्हेन इट इज टू ऑथर्स तो पहले को 70 मिलता है, दूसरे को 30 मिलता है, राइट। लेकिन तीसरा ऑथर जब आता है ना, तो वो 15-15 कंसिडर करते हैं। अगर आप 30 भी क्लेम करेंगे ना, तो आपके कमिटी में जो आएंगे एक्सपर्ट्स, वो आपको आधा करके देंगे वहां पे। ये जनरली हमारा ये है। अभी देखिए, अभी ये जो कंफ्यूजन था, ये कंफ्यूजन उन्होंने आगे चल के, जो अभी नया जो 7th पे का ये था ना, ये आया है ना, अभी मैं आती हूँ उसकी तरफ में, तो वहां पे उन्होंने इसको और चेंज कर दिया है। तो सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में जी आपको इसका जी उत्तर मिल जाएगा। नाउ जी दिस इज ना, अभी 17-18 का जो है ना सिस्टम, अभी खत्म हो चुका है। अभी जो नया आएगा, मैं इसलिए आपको वो पुराना भी दिखा रही हूँ ताकि कैसे कैसे चेंजेस आती है। जैसे देखिए, यहाँ पे यूजीसी अप्रूव्ड लिस्ट में आपका पेपर नहीं है जर्नल में, तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता था 17-18 में। एक चीज ध्यान में आई है आपको यहाँ पे? जी अभी जी इसको भी उन्होंने नेक्स्ट इसमें क्लेरिफाई किया है। अगला जो मैं अभी बताऊंगी ना 2018 का, उसमें उन्होंने इसको भी क्लेरिफाई किया है। तो मैं अभी आती हूँ उसकी तरफ में, हम उसको डिस्कस करेंगे, राइट। आगे चलते हैं। ओके मैडम. ओके, देखिए इम्पैक्ट फैक्टर के लिए भी उन्होंने मार्क्स दिए थे। जैसे 25 बेस था, ओके, तो लेस देन 1 अगर इम्पैक्ट फैक्टर है तो 5 पॉइंट्स ऐड करो, उसमें ऐड करो, मतलब 25 के 30 हो जाएंगे। 1 और 2 के बीच में है तो 10 मार्क ऐड करो, दैट मीन्स 35 हो जाएंगे। 2 to 5 है तो 15 मार्क्स ऐड करो, दैट इज कितना हो जाएगा? 25 में 15 40। 5 to 10 के बीच में है तो 25 में 20 ऐड करो, दैट इज 45। एंड 10 एंड अबव होगा तो 25 ऐड करो। ये मीन्स एक पेपर के लिए आपको 50 मार्क मिल सकते थे, राइट। प्रीवियसली इट वाज 10, सॉरी 40। अभी हम थोड़ा और आगे चलते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे रिसर्च पब्लिकेशंस फॉर बुक्स, बुक्स के लिए 50 मार्क थे, वो उन्होंने इंटरनेशनल पब्लिशर वालों ने वाला होगा वो, तो 30 कर दिए, यहाँ पे कम कर दिए 17 में। नेशनल लेवल पब्लिशर है तो 20 कर दिए, लोकल है तो 15 कर दिए। चैप्टर इन इंटरनेशनल बुक को वैसे ही रखे उन्होंने,
10 और 5. ठीक है? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, if a chapter in international book is written by two authors, then there will be 70-30 contribution or 100% for each author? 70-30. Okay. ओके. देखिए रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए उन्होंने सेम रखा है, इसमें उन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है. ओके. सिर्फ यहाँ पे 25,000 to 1 लाख था, तो उन्होंने 1 लाख से 3 लाख किया है माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का. ओके. 1 लाख के नीचे वाले माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट को मार्क्स नहीं है. 20, 15 and 10. और Madam, हेलो. sorry to disturb you, madam. Is this only for government funded project or maybe the institutional funded project also? सर इंस्टीट्यूशनल फंडेड आल्सो. That includes in institutional funded. हाँ, Okay, includes. okay. Because I have claimed for institutional funded and they have given me the marks. Okay then. Thank you. Okay. And suppose if the research findings of your projects are accepted by the government in making some policy documents or some patent you have claimed for, then again extra marks will be there. For international body, central, state, local body, 30 for international, 20 for national, 10 for state and 5 for local. Okay. नाउ रिसर्च गाइडेंस ऑनगोइंग के लिए नील था, एमफिल के लिए अवॉर्डेड के लिए 3 मार्क थे वहां पे पुराने, इसमें यहाँ पे 5 कर दिए. पीएचडी डिग्री अवॉर्डेड के लिए 10 थे, उसको 15 कर दिए. सबमिटेड के लिए 7 थे, उसमें 10 कर दिए. सो यहाँ पे मार्क्स बढ़ गए थे. राइट. अभी रिफ्रेशर कोर्स जो है वो आपको जो करना है 2 वीक्स का, उसके आगे का वो आप करेंगे बिकॉज इट वाज मैंडेटरी. लेकिन उसके लिए जो पहले मार्क्स देते थे आपको 30 मार्क्स, वो अभी नहीं मिलेंगे. ओके. फॉर एनी ऑफ द रिफ्रेशर कोर्सेज 17-18 को मार्क्स नहीं है. यहाँ में उन्होंने फेलोशिप एंड अवार्ड्स बताया था फ्रॉम एकेडमिक बॉडीज. इफ इट इज इंटरनेशनल 15, नेशनल 10, स्टेट 5 था. इनवाइटेड लेक्चर्स, इसमें उन्होंने कैपिंग डाल दी है. देखिए आप देखेंगे मैक्सिमम कैपिंग ऑफ 20% ऑफ टोटल रिक्वायर्ड एपीआई फॉर ईच स्टेज. मतलब आपको टोटल रिक्वायरमेंट क्या है एपीआई की 100 है, तो 100 का 20% ही आप यहाँ पे क्लेम कर सकेंगे. इंटरनेशनल लेवल पे आप इनवाइटेड लेक्चर देते हो तो 7 लेक्चर्स, पेपर प्रेजेंट करते हो तो 5. नेशनल लेवल पे 5 for invited lecture, 3 for paper presentation and state university level पे 2 for invited lectures and 2 for presentation. अभी 2017-18 जो 4th amendment था उसमें उन्होंने डेवलपमेंट ऑफ ई लर्निंग डिलीवरी प्रोसेस मटेरियल, ये एक नया क्राइटेरिया डाला था. और अगर आप ये ई कंटेंट जनरेट करते हो तो आपको पर मॉड्यूल 10 मिलेंगे. ओके. This was the new criteria introduced in 4th amendment. Now I'm coming to the latest one, जिसके ऊपर आपको काफी ध्यान देना चाहिए. देखिए as far as Maharashtra state is concerned, 8 March 2019 से नया रेगुलेशन है और फाइनेंशियल मैटर्स सेटलमेंट के लिए 1 जनवरी 2016 है. राइट. अभी देखिए यहाँ पे पीएचडी मैंडेटरी की गई है एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए इन कॉलेजेस. राइट. और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्शन ग्रेड लेवल 12 में ही पीएचडी मैंडेटरी है. आप सबको ये चीज ध्यान में आ गई? हेलो Yes, madam. हेलो. Yes, madam. Yes, madam. ना, तो पीएचडी का महत्व जो है वो बढ़ गया है कॉलेजेस में एज वेल एज यूनिवर्सिटी में. प्रीवियसली ऐसा कुछ भी नहीं था. ओके. आगे चलते हैं. देखिए एमफिल और पीएचडी अगर आप है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और इन सर्विस, ओके, तो आपको कुछ इंक्रीमेंट्स मिलते थे. हाँ या ना? कोई पीएचडी है यहाँ पे? सब होंगे.
यस, जी Yes, जी तो आपने पीएचडी के इंक्रीमेंट्स लिए हैं? MPhil and PhD. येस मैम. जी जी हाँ, लेकिन अभी वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बंद कर दिए हैं। ओके, और अगर आपकी पीएचडी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किए हैं आपने, तो वो टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में वो इंस्टीट्यूट होना चाहिए, तभी वो वैलिड मानी जाएगी, राइट ना। सी, यहाँ पे क्लॉज नंबर 6.3 है, जो कहता है न्यू कैश सिस्टम टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस रेगुलेशन दैट इज 8 मार्च 2019 इन महाराष्ट्र। उसमें उन्होंने ये भी कहा है एज पर यूजीसी गाइडलाइंस, उन्होंने क्या कहा है, फैकल्टी मेंबर्स हु हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड और लाइकली टू क्वालिफाई शॉर्टली हैव बीन गिवन 3 years, दैट इज annual year 2021, okay, and 21-22 in Maharashtra, to exercise an option to go for cash as per the new regulation or the old regulation। देखिए, इसमें भी आप में से कोई ना कोई आता होगा। एक चीज ध्यान में रखना कि आपको प्रमोशन न्यू रेगुलेशन से चाहिए या ओल्ड रेगुलेशन से चाहिए। मतलब अ, आपका जो टर्म है, असेसमेंट पीरियड है, वो अगर 2020-21 तक है बाकी स्टेट्स के लिए और 22 तक महाराष्ट्र के लिए है ना, उसमें अगर आता है तो आपको ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए सुविधा रहेगी। देखिए, अगर आपका पहला प्रमोशन है, दूसरा प्रमोशन है, ठीक है, तो आप नए इससे ले सकते हो, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिकॉज ये 2 प्रमोशंस जो है, आपका जो डेट ड्यू है, ये चीज अच्छे से समझ लो, जो ड्यू डेट है, ये 2 प्रमोशन ड्यू डेट से मिलेंगे, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर का प्रमोशन जो है वो फ्रॉम द डेट ऑफ सिलेक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ इंटरव्यू आपको मिलेगा। देखिए, कॉलेजेस में जल्दी कैश हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज में कैश जल्दी नहीं होते, 2-2 3-3 साल के बाद में कमिटी आती है, राइट। तो ऐसी चीजों के लिए जो प्रॉब्लम्स है, तो वो ध्यान में रखते हुए आपको पूरा स्टडी करके आपको देना पड़ेगा कि मेरा फायदा किस में है, न्यू रेगुलेशन में है या ओल्ड रेगुलेशन में। सो दैट ऑप्शन यू कैन एक्सरसाइज। ओके, देखिए, उन्होंने जिनके मतलब लेट प्रमोशंस हुए हैं, तो उन्होंने यूजीसी ने एक गाइडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर 2018 तक कर डालो, तो आपको पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा, डिले नहीं होगा आपका। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज में ये काफी यूनिवर्सिटीज में उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है, लोगों को टाइम दिया है, डीलेड वालों को रिफ्रेशर ओरिएंटेशन कंप्लीट करने के लिए। Madam, ma'am, हाँ, is the regulation is same for Maharashtra government and Tamil Nadu government, or it may be differ for APA, for CAS? it may differ, sir, Oh, it may differ based on the state. based on the state. Okay, See, as thank you. far as Maharashtra government, they have not accepted this thing. Okay, that is even this kya increments. Okay. Increments also Maharashtra government has not been accepted, and this extension date for delayed persons जो है उन्होंने दी थी यूजीसी गाइडलाइंस ने, वो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नहीं एक्सेप्ट की, लेकिन तमिलनाडु ने किया होगा, हो सकता है दैट In Tamil Nadu for level 1 they are asking only one orientation. For level 2 they are asking one orientation plus 2 refresher. The entire scheme it is no different. I'm coming to that point, sir, because new regulation just I have started na, Okay. so that may be similar for all the universities. Oh, it is common to all. But specifically, as the crowd is from Maharashtra, so I have taken these important points, highlighted. Okay, ma'am. Thank you. Okay, Okay. okay. See,
The promotion to the post of associate professor and professor shall be considered from the date of selection, that is from the date of your interview. Okay, ये सबके लिए सेम है सर. Then for promotion, the eligible teacher should be on roll or in active service. ये भी important point है. For promotion, the eligible teacher should be on roll. Okay. Then there is one more important point. The candidate who does not succeed in the first assessment, he or she shall have to reassessed only after 1 year. When such a candidate succeeds in eventual assessment, her promotion shall be deemed to be 1 year from the date of rejection. ठीक है. अगर आप पहले इसमें आपका कुछ गड़बड़ हो जाता है और आप फेल हो जाते हो उसमें, तो 1 साल के बाद आप फिर से अपना प्रपोजल दे सकते हो, लेकिन 1 साल आपका नुकसान हो जाएगा यहाँ पे. और उन्होंने कहा कि जो हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम जनरली 1 साल के अंदर ही होना चाहिए, तो अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम को उन्होंने नाम दिया है इंडक्शन प्रोग्राम. So an induction program of 1 month shall be introduced for all newly recruited assistant professors in the universities, colleges, institutions, ideally before the starting of their teaching work, but definitely within 1 year of the recruitment of the new faculty member. 1 साल के अंदर में आपको इंडक्शन प्रोग्राम करना है जो न्यूली रिक्रूटेड है उनको. ओके. नाउ जो नया सिस्टम है आज की डेट में जो एप्लीकेबल है, उसके लिए 3 क्राइटेरिया है. पहला है नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस, दूसरा है एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट AAR, और तीसरा है रिसर्च स्कोर इंक्लूडिंग ट्रेनिंग कोर्सेज. देखिए पहले 2 ही क्राइटेरिया थे, API एंड नंबर ऑफ इयर्स. अभी क्राइटेरिया 3 हो गए हैं. उन्होंने ये AAR जो है वो ऐड किया है. AAR. ओके. ये क्या है ये भी हम यहाँ अभी देखेंगे. देखिए नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस नए इसमें वही पैटर्न उन्होंने फॉलो किया है. ओके. सेम पैटर्न हैज बीन फॉलोड, उसमें कोई भी चेंज नहीं है. पहला प्रमोशन 4, 5, 6 साल में, उसके बाद 5 साल, उसके बाद 3 साल, उसके बाद 3 साल. राइट. There is no change in number of years of service. This is newly introduced criteria in latest APIs. Okay. उसमें देखिए लेवल उसमें देखिए ये प्रमोशन आपका 4, 5 या 6 साल में होता है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन. राइट. तो इसमें आपको satisfactory oblique good in at least 3, 4, 5 out of 4, 5, 6 preceding years आपको चाहिए. ये चीज ध्यान में आई आपके. मतलब आपका 4 साल, 5 साल, 6 साल जो भी असेसमेंट पीरियड होगा, उसमें से 3 साल के इसमें आपको सेटिस्फैक्ट्री और गुड चाहिए आपके परफॉर्मेंस में. ठीक है. ये कौन देगा सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड? आपका जो बॉस है वो आपको ये Principal. प्रिंसिपल. एज फार एज कॉलेज इज कंसर्न प्रिंसिपल. ओके. उसके बाद में जैसे यूनिवर्सिटीज में आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देगा. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का VC देगा. राइट. अभी देखिए 11 to 12 में जाएंगे, उसमें 5 साल का असेसमेंट पीरियड है, तो 5 में से 4 साल आपको सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड लेना है. एसोसिएट प्रोफेसर का जो प्रमोशन है वो 3 साल का है, उसमें सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड 2 साल होना है. फिर प्रोफेसर का जो है उसमें भी 2 साल आपको सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड लेना है. ठीक है. यहाँ पे देखिए PhD is an essential requirement for promotion to the post of associate professor and professor for college teachers also. ओके. अभी देखिए ये एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब आपको गुड, सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री कैसे दिया जाता है. तो टीचिंग. ओके. टीचिंग के लिए देखिए क्लासेस टॉट
includes sessions on tutorials, lab and other teaching related activities. उसमें number of classes taught divided by number of classes assigned into 100 यानी परसेंटेज निकाले आपको, तो 80% से ज्यादा है तो गुड मिलेगा, 70 to 80% में आप आते हो तो सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा, और 70 के बिलो आप आते हो तो अनसेटिस्फैक्ट्री वो होगा, राइट? ये समझा सबको? मैडम यस मैम। Yes, ma'am. हाँ? यानी आपका टीचिंग का आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है, वो सबमिट करना है, एंड द अथॉरिटी विल असाइन द percentage to you. Then second one point is involvement in the college students related activities and research activities. ठीक है, उसमें उन्होंने क्लियरली एक लिस्ट दी है, ओके? वो लिस्ट में से 3 और उससे ज्यादा एक्टिविटीज में आप एंगेज्ड हो तो गुड, 1 या 2 एक्टिविटीज में आप एंगेज्ड हो तो सेटिस्फैक्ट्री, और मैडम एक भी लिस्ट आहे का? activity हाँ लिस्ट आहे का ती या दे प्रेझेंटेशन मध्ये? दे रही हूँ, दे रही हूँ, येस दे मॅम, रही हूँ, नेक्स्ट स्लाइड। येस मॅम। और अगर आप एक भी एक्टिविटी में नहीं है तो आपके प्रिंसिपल आपको अनसेटिस्फैक्ट्री देंगे आपके एनुअल असेसमेंट रिपोर्ट पे। अभी ये जो लिस्ट है कि कौन से एक्टिविटीज में आपको एंगेज रहना है वो ये है। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज सच एज हेड, चेयरपर्सन, डीन, डायरेक्टर, कोऑर्डिनेटर, वार्डन एटसेट्रा। दूसरा है एग्जामिनेशन एंड इवैल्यूएशन duties assigned by the college, university or attending the examination paper valuation. तीसरा है student related co-curricular extension and field based activities such as student clubs, career counseling, study visits, student seminars and other events, cultural, sports, NCC, NSS and community services. The next one is organizing seminars, conferences, workshops, other college university activities. Evidence of actively involved in guiding PhD students. Then conducting minor or major research projects sponsored by national and international agencies. Then at least one single or joint publication in peer reviewed or UGC list of journals. देखिए, ओके, ये एक्टिविटीज है, इसमें से 3 या 3 से ज्यादा एक्टिविटीज में आप एंगेज हो तो गुड, 1 या 2 एक्टिविटीज में हो तो सेटिस्फैक्ट्री, एक भी नहीं करते हो सो इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्राइटेरिया, इजंट इट? ये तो हम करते ही है एग्जामिनेशन ma'am. इवैल्यूएशन, तो Excuse me, इसमें ma'am. अनसेटिस्फैक्ट्री तभी मिलेगा जब आपका प्रिंसिपल से अच्छा नहीं है, ठीक है ना? मॅडम एक क्वेरी थी मॅडम, हाँ, मॅडम हे जे सॅटिस्फॅक्टरी किंवा अनसॅटिस्फॅक्टरी रिमार्क जे मिळतो तो कॉलेज लेवलला हेड ऑफ द डिपार्टमेंट देतो का प्रिन्सिपल कडनं दिला जातो? प्रिन्सिपल देणार, अच्छा अच्छा, मग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कडे कुठले राईट्स नसतात का? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेकमेंड करू शकतो, फक्त रिकमेंडेशन करू शकतो? रेकमेंडेशन करू शकतो पण प्रिन्सिपल देतात. ओके. मॅडम हॅलो, हाँ, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी जो रहते ना, फॉरवर्डिंग अथॉरिटी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। मॅडम हाँ बोलिए। हे जे सेकंड वाला पॉइंट आहे ना, एक्झामिनेशन अँड इव्हॅल्युएशन ड्युटीज, हाँ, हे या लिस्ट मध्ये आपण जे काही काम करतो मग त्याचे काही एव्हिडन्स वगैरे असतात का हो, पीबीएस ला? प्रत्येक गोष्टीचा एव्हिडन्स तुम्हाला ठेवायला लागतो. अच्छा अच्छा, ठीक आहे मॅडम. हाँ, ते अशी एव्हिडन्स नसेल ना तर तुम्हाला ते पॉइंट्स नाही मिळणार, तिथे ओके. स्ट्रिक्ट स्क्रुटिनी होते. तुमचं मॅडम IPS असेल, एव्हिडन्सेस म्हटलं तर प्रिन्सिपल कडून एक लेटर ना आपल्याला जे देतील ते की यांनी हे हाँ ड्युटीज हाँ, केल्या आहेत म्हणून. तुम्ही एक काम करा, तुम्ही ज्या ज्या काम केलेले आहेत ना त्याचं लिस्ट करा आणि गेट इट साइन्ड बाय युअर प्रिन्सिपल. मॅडम ते येस कंबाईन पण राहू शकते ना वेगवेगळ्या ड्युटीज साठी एकाच लेटर, हाँ म्हणजे जसं इन्व्हिजिलेशन झालं, आपलं व्हॅल्युएशन झालं किंवा हाँ हाँ बाकी हाँ, गोष्टी. एक आमच्याकडे म्हणजे काही कॉलेजेस मध्ये मी पाहिलं की त्यांनी एक स्टँडर्ड बनवलेलं आहे ड्राफ्ट, त्याच्यावरती प्रिन्सिपल सही करून देऊन देते त्यांना, ते त्यांच्या बरोबर. प्रपोजलला लावतात.
मॅडम Excuse me. एक विचारायचंय येस. Yeah, actually, मॅडम the हे CAs जे and all. Hold on. एक एक जण विचारा. काइंडली आस्क वन बाय वन. Okay. Okay. ओके मॅडम हा. यावर्षी जसं युनिव्हर्सिटीने सांगितलंय की फर्स्ट सेमिस्टर आणि थर्ड सेमिस्टरच्या एक्झाम कॉलेजला घ्यायचे आहे. तर हो. मग ह्या सगळ्या एक्झामिनेशनच्या व्हॅल्युएशनच्या वगैरे सगळ्या ड्युटी येतीलच ना प्रत्येक लेक्चररला? हो, येणारच आहेत ना. मग त्याचं बेनिफिट मिळेल मग. सगळ्याच याचं बेनिफिट मिळेल, कारण आपण एक्झामिनेशन घेतो. इंटरनल मार्क आहेत. इंटरनल मार्कांकरता तुम्ही एक्झाम्स घेताच की नाही घेत. मग ते सगळं तुमचं याच्यामध्येच येतं ना, इव्हॅल्युएशन आणि एक्झामिनेशन वर्क्स मध्ये. म्हणजे हा पॉइंट तर तुमचा आहेच, म्हणूनच मी म्हणत आहे ना की तुम्हाला अनसॅटिस्फॅक्टरी मिळूच शकत नाही. हा, एव्हरीवेअर व्हिजिट्स पण नेतो आम्ही. हो. व्हिजिट्स पण नेतो आपण, तर म्हणजे इम्पॉसिबल आहे ते हे असं काही. अनसॅटिस्फॅक्टरी करणं इम्पॉसिबल आहे, ठीक आहे ना. हा, काही वेगळं मॅटर नेतो करणार. येस हा, मॅम. म्हणजे खूप काही असं जोरदार क्रायटेरिया आहे असं नाही. इथे Yes. पण कसं की नंबर ऑफ टीचर्स, म्हणजे नंबर ऑफ तुम्हाला लेक्चर्स किती दिलेले आहेत आणि त्यातनं तुम्ही किती घेतले, हे पण आपण घेतोच लेक्चर्स. त्यामुळे इट इज नॉट म्हणजे खूप असं खडतर क्रायटेरिया असं नाहीये तो. मॅम मला एक रिसर्च बद्दल विचारायचं होतं. मध्यंतरी एक नोटिफिकेशन मध्ये होतं की तुम्ही जर MSc मुलांना प्रोजेक्ट देत असणार तर त्यासाठी 2 मार्क्स असं असाइन केलेलं आहे. तर ऍक्च्युली आम्ही MSc ला शिकवतो, मग 10-10, 12-12 मुलं येतात कधी कधी आमच्याकडे. तर ते मार्क्स खरंच मिळतात का? बिकॉज इट इज रिटन डेझर्टेशन, इट इज नॉट प्रोजेक्ट. कारण मी डेझर्टेशन आणि मी मी तिकडे येते मॅडम. ओके ओके थँक्यू. अजून आपण ते मार्किंग सिस्टमचं सुरू नाही केलंय. आपण आता नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्व्हिस पहिला क्रायटेरिया पाहिला आणि दुसरा आपण AAR पाहिला. अजून मी रिसर्च स्कोर कडे नाही आली, मी तिथे ओके. सांगते तुम्हाला. हो. चालेल. ओके मॅम थँक्यू. ओके, ओवरऑल ग्रेडिंग कैसे होता है? टीचिंग में गुड है, ओके. अदर एक्टिविटीज में गुड है, सो ओवरऑल ग्रेडिंग विल बी गुड. Teaching is good, other activities is satisfactory, then overall grading will be good. But teaching is satisfactory and other activities is good, it is satisfactory. दोनों में satisfactory है तो satisfactory, किसी एक में unsatisfactory है तो overall grading will be unsatisfactory. ये समझा सबको? मैडम. Yes, ma'am. Yes. Yes, madam. Yes. आगे चलते हैं. Now I am coming to the third criteria, that is research score and including training courses. क्या क्या करने हैं, ठीक है. अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए. पहले प्रमोशन के लिए 21 डेज ओरिएंटेशन और इंडक्शन कोर्स जो है वो आपको करना है. देन 1 रिफ्रेशर कोर्स ऑब्लिक रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स ऑफ 14 डेज. इसके लिए और है एनी 2 ऑफ मिनिमम 5 डेज, ठीक है. इसके लिए एक और है, अगर आप ये नहीं करते हो तो ये करो 5 डेज के. इसके लिए एक और है, दैट इज 1 MOOCs कोर्स विथ ई-सर्टिफिकेशन. देखिए अभी MOOCs यानी स्वयं के जो कोर्सेस है, आपने सबने पढ़े होंगे स्वयं कोर्सेस. तो वो 4 क्वाड्रेंट्स का अगर आप कोर्स करते हो, ई सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, राइट. और सेटिस्फैक्टरी ऑब्लिक गुड इन एनुअल परफॉर्मेंस वो आपके AAR में चाहिए, ओके. और ये कोर्सेस चाहिए, ओके. और यूनिवर्सिटी टीचर है आप, तो यहाँ पे इस स्टेज में आपको UGC केयर लिस्ट में एटलीस्ट 1 पब्लिकेशन चाहिए, ओके. आगे चलते हैं. 7,000 to 8,000 AGP वाला जो ग्रेड है, मॅडम, हॅलो मॅडम, क्वेश्चन होता. माझी अपॉइंटमेंट 2020 ची आहे. 2012च्या आधी PhDच्या वेळेस मी 8 पब्लिकेशन केले, तर माझे ते कन्सिडर होतील का फर्स्ट प्लेसमेंटसाठी? नाही. अपॉइंटमेंटच्या नंतर आपल्याला पब्लिकेशन्स पाहिजे. हो हो हो, तिथूनच तुमचा असेसमेंट पिरियड चालू होतो.
हा ओके ओके मॅडम. पण जर का हा तुमच्याकडे असोसिएट प्रोफेसरची जागा निघाली आहे, हो ठीक आहे, तर त्याला हम्म. तुम्ही लावू शकतात ते, अच्छा म्हणजे बरं मॅडम. सिलेक्शन साठी लावू शकतात, प्रमोशन करता नाही. ओके मॅडम. ठीक ठीक आहे. थँक्यू. नाउ द सेकंड प्रमोशन, लेवल 12, refresher course, research methodology course, workshops, syllabus upgradation workshop, teaching learning evaluation, technology programs, FDPs, any two of minimum 10 days. अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो और उसके लिए और है वर्कशॉप, सिलेबस अपग्रेडेशन वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग इन टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन, FDP, any two in lieu of one of minimum 5 days. ठीक है. And any two of minimum 10 days means both the courses should be having minimum 10 days. Yeah, minimum 10 days. Then one MOOCs course in relevant subject with e-certification. Okay. E-content development in 4 quadrants. यानी देखिए, one MOOCs course in relevant subject with e-certification oblique e-content development in 4 quadrants. यानी आप खुद e-content development कर रहे हो 4 quadrants में, जैसे स्वयं के courses है वैसे, तो minimum 10 modules in at least 1 quadrant, यानी 4 quadrant है, उसमें minimum 10 मॉड्यूल्स होने चाहिए एक एक क्वाड्रेंट में. ऐसे 40 क्वाड्रेंट्स में ई डेवलपमेंट आप करते हो, ई कंटेंट डेवलपमेंट, तो दैट विल बी कंसीडर्ड फॉर ऑल दीज कोर्सेज. ठीक है. और यहाँ पे यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए इसी लेवल पे PhD डिग्री मैंडेटरी है और 3 पब्लिकेशंस इन पीयर रिव्यूड ऑब्लिक यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स. अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, जो क्राइटेरिया 4th अमेंडमेंट में था कि यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स ओनली तभी मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, यहाँ पे उन्होंने पीयर रिव्यूड ऑब्लिक यूजीसी केयर किया है, यानी पीयर रिव्यूड के पेपर्स के भी मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे. राइट, आगे चलते. Ma'am, नाउ just a यस, minute. Is it for only for university teacher, यूनिवर्सिटी टीचर्स, not for college teacher? 3 papers. न द पेपर्स इन यूजीसी केयर ऑब्लिक पीयर रिव्यूड कॉलेज टीचर्स के लिए भी है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए नहीं है सेकंड प्रमोशन के लिए. इट इज ओनली फॉर यूनिवर्सिटी टीचर्स, नॉट फॉर कॉलेज टीचर्स. So college आपके मैडम कितने ये मार्क्स लेने हैं? college teacher देखिए don't required publications. सर, देखिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जस्ट लिसन टू इट. हाँ, देखिए, एक होता है मार्क्स, दैट इज जो मिनिमम मार्क्स आपको लेने हैं बेसिक. सपोज आपके प्रमोशन के लिए आपको रिसर्च स्कोर 100 होना चाहिए, 100 के नीचे होगा तो इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. सो देर आर सेवरल कैटेगरीज in which you can take the score, you can make the score. Okay. लेकिन suppose if the university teacher वो जर्नल पब्लिकेशन में कुछ ना करते हुए बाकी के कैटेगरीज में पूरे मार्क्स लेता है ना, तो वो नहीं चलेगा. उसको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो 3 पब्लिकेशंस जर्नल्स में होने ही होने चाहिए. गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. ओ, What about मैडम college इसका teacher? ma'am? मतलब कॉलेज टीचर्स के लिए यहाँ जो ऊपर के जितने भी मतलब रिक्वायरमेंट्स है, ये ऊपर एनी के टू ऑफ द, रिक्वायरमेंट्स है. आपको कॉलेज टीचर्स के लिए बहुत इजी है सर, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए प्रमोशंस बहुत कठिन है. इन मैंने सिंपल लैंग्वेज, पेपर्स की जरूरत नहीं है, पब्लिकेशंस की जरूरत नहीं है मतलब सेकंड प्लेसमेंट के लिए सर मैं कॉलेज आपको एक टीचर्स. चीज, कॉलेज टीचर्स को जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तो उसके लिए आपको प्रेशराइज मैंडेटरी नहीं नहीं है. है, ओके, मैंडेटरी नहीं है. ठीक है. मतलब जर्नल का जो कैटेगरी है उसमें आपको 0 मार्क रहा तो भी बाकी कैटेगरीज में आप उतने रिक्वायर्ड मार्क्स लेके निकल सकते हो, लेकिन यूनिवर्सिटी हाँ टीचर नहीं निकलेगा.
ओके ओके। समझ नहीं में मैम, आया? इस क्राइटेरिया में हमको Okay. 50 मार्क्स चाहिए, ऐसा कुछ पढ़ने में आया था मैं कि नहीं? आती हूँ ना। अभी ओके मैं ओके। कोर्सेस में ही हूँ आपके। कैटेगरी 1 ही चल रहा है अभी। आपका रिसर्च स्कोर में जो कैटेगरी, पहला कैटेगरी है जर्नल पब्लिकेशंस का, उसी में है हम अभी मॅडम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के इसमें। हाँ। मॅडम एक प्रश्न विचारायचा होता. हम्म, मूकच्या संबंधित आहे मॅडम हा प्रश्न. जे आपण मूक कोर्स म्हटलं, जसं समजा आपण एक स्वतःचं डोमेन रजिस्टर केलं आणि स्वतःच एक मूडल सेट बनवली, ज्याच्या थ्रू आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना बीएससी चे जे कोर्सेस आहेत तसे कोर्सेस डेव्हलप केले, व्हिडिओ लेक्चर असाइनमेंट्स आणि क्विजेस टाकले, तर ते मूक मध्ये क्वालिफाय होतं का? मी तिकडे येते ना, ते कुठे क्वालिफाय होतं ते सांगते तुम्हाला. अच्छा, ओके ओके ओके, थँक्यू. हं? त्याचं प्रोव्हिजन केलेलं आहे त्यांनी, अच्छा, तर ते एक्झॅक्टली कुठे टाकायचं ते मी तुम्हाला सांगते. ओके ओके, थँक्यू. फ्रेंड्स, मॅडमचं ना पहिले पूर्ण होऊन जाऊ द्या. त्यानंतर तुम्ही क्वेरीज नोट डाऊन करून ठेवा आणि मग एक एक करून विचारा. अशाने काय होईल, मॅडमचं पूर्ण प्रेझेंटेशन होणारच नाही. येस मॅडम, फर्स्ट येस. मॅडम शुड कम्प्लीट एव्हरीथिंग. मीनवाईल तुमचे डाऊट्स तसेच क्लिअर होऊन जातील. मे बी असे होऊ शकेल. तर पहिले येस मॅडमला कम्प्लीट करून टाकू द्या आणि मग तुम्ही लोक तुमचे क्वेरीज विचारा. बरोबर मॅम? हो. येस हां मॅडम, येस. हां, ठीक आहे मॅम, कंटिन्यू. कारण त्याच्या प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर आहे पुढे. हां, पुढे आहे. आय नो मॅम. ठीक आहे मॅडम, कंटिन्यू करा. हं? हो. ओके. एंड एसोसिएट प्रोफेसर का जो प्रमोशन है, ओके, उसके लिए रिफ्रेशर कोर्स या मेथोडोलॉजी एबीपी जो भी लगता है, एनी वन ऑफ मिनिमम 10 डेज का आपको चाहिए. ओके, एनी वन कोर्स ऑफ 10 डेज. उसके लिए और भी है, दैट इज एफडीपीज एनी 2 ऑफ मिनिमम 5 डेज. यानी एक साथ आपको 10 दिन आपका मैनेजमेंट नहीं छोड़ रहा है, तो छोटे छोटे 5-5 दिन के 2 किए तो भी वो वैलिड है. और 1 MOOCs course in a relevant subject with e-certification, e-content development in 4 quadrants, minimum 10 modules in at least 1 quadrant. Okay. Then PhD in relevant / allied subjects. ये मैंडेटरी है. Satisfactory and good at least 2 years में आपको होना चाहिए. And only for university teachers, 7 publication in peer reviewed / UGC listed जर्नल, और उसमें से 3 जो है वो असेसमेंट पीरियड में होनी चाहिए. देन रिसर्च स्कोर 70 होना चाहिए. और यहाँ पे देखिए, मेरी खुद की एक फ्रेंड है, वो पीएचडी गाइड अभी बनी, लेकिन वो शी इज एलिजिबल फॉर दिस एसोसिएट प्रोफेसर, सॉरी, दिस ग्रेड. ओके, एसोसिएट प्रोफेसर ग्रेड के लिए वो एलिजिबल हो गई है, लेकिन उसके पास में अभी स्टूडेंट जो है वो एनरोल्ड हुए. तो एविडेंस ऑफ हैविंग गाइडेड अ मिनिमम ऑफ 1 पीएचडी स्टूडेंट. देखिए, यूनिवर्सिटी टीचर्स के लिए बहुत टफ कर दिया है, वाइल कॉलेज टीचर्स के लिए उन्होंने प्रमोशंस बहुत इजी कर दिए हैं. आप यहाँ पे देखेंगे. एंड प्रोफेसर का ग्रेड जो है वो नई अमेंडमेंट में कॉलेजेस वालों को भी वो दे रहे हैं. और उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आपका जो असेसमेंट पीरियड है उसमें 3 पब्लिकेशंस चाहिए आपको, राइट? लेकिन आपके पूरे इसमें करियर में 10 पेपर्स आपको चाहिए. ठीक है? यूजीसी लिस्टेड / पीयर रिव्यूड. ओके, ये भी चीज उसमें है. मतलब पीयर रिव्यूड होंगे तो ही तो भी आपको मिल जाएगा ये जो पर्टिकुलर है. हाँ? फिर मैडम, फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री डेट ऑफ पूरे वो अपॉइंटमेंट, चाहिए. हाँ, फ्रॉम द अपॉइंटमेंट की डेट डेट ऑफ से अपॉइंटमेंट. कंप्लीट. फ्रॉम द ओके ओके. डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 10 पब्लिकेशंस. ओके. द रिसर्च स्कोर 110 चाहिए आपको प्रमोशन के लिए. ठीक है? ओके. यस मैडम, यस. Only for university teachers, evidence of having successfully guided PhD student. प्रोफेसर के लिए अभी सीनियर प्रोफेसर का जो है 10 बेस्ट पब्लिकेशंस ड्यूरिंग द लास्ट 10 years, 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की कमिटी आनी चाहिए. एंड दिस
एविडेंस ऑफ हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड मिनिमम 2 PhD स्टूडेंट्स। अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप ध्यान से देखिए। अभी देखिए, आपको जो रिसर्च स्कोर है वो कंप्लीट करना है, ये सबके लिए लागू है, इट इज नॉट ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। ठीक है, आपको मार्क्स इसी प्रकार से लेने हैं अभी। रिसर्च पेपर्स इन peer reviewed public UGC listed journals। अभी देखिए, एज ऑन टुडे वी हैव UGC केयर। सबको पता है UGC केयर? यस मैडम। ओके, तो ये जो पीयर रिव्यूड है और उसको ऑब्लिक किया गया है, तो हमारी यूनिवर्सिटी ने ये पीयर रिव्यूड निकाल दिया है और हमको कहा गया है कि UGC केयर के पेपर्स होंगे तो ही मार्क्स काउंट होंगे। तो इस प्रकार से इट में डिफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, ये एक चीज ध्यान में रखिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 8 मार्क मिलेंगे पर पेपर, लेकिन बाकी जो भी फैकल्टीज है उसके लिए 10 पर पेपर मिलेंगे। फिर दूसरा जो है पब्लिकेशंस, ओके, अदर देन रिसर्च पेपर्स। बुक्स पब्लिश्ड बाय इंटरनेशनल पब्लिशर्स के लिए 12-12 मिलेंगे, नेशनल पब्लिशर्स के लिए 10-10 मिलेंगे, चैप्टर इन एडिटेड बुक के लिए 5-5 मिलेंगे, और एडिटर ऑफ अ बुक बाय इंटरनेशनल पब्लिशर, ये 2 ऐड किए उन्होंने। पहले ये 2 के लिए मार्क्स नहीं थे एडिटर के लिए। अभी आप एडिटर हो, कोई इंटरनेशनल पब्लिशर आपका बुक ये कर रहा है, तो आपको एडिटरशिप के लिए 10-10 मार्क्स मिलेंगे, और नेशनल पब्लिशर ने आपका एडिटेड बुक छापा हो तो 8-8 मार्क्स मिलेंगे। इतना क्लियर हो गया सबके लिए? यस मैडम। मॅडम एक हॅलो क्वेश्चन आहे माझा. हॅलो हा बोलिए। मॅडम, लोकल पब्लिकेशन साठी नाही आहे का बुक पब्लिकेशन साठी मार्क्स? नाही येत नाही ते, ISBN नंबर असेल तर मॅडम काहीच नाहीये, मिळणार नाही तुम्हाला। ते मिळणार नाही का मॅडम ISBN नंबरचे लोकल नाही पब्लिकेशनचे? नाही, स्ट्रिक्टली स्क्रुटिनी झाली तर ते मिळणार नाही तुम्हाला। लोकल पब्लिशरचं इथे लिहिलेलंच नाहीये। नाही आणि मॅडम, पण मॅडम इथे पब्लिशिंग ISBN मध्ये नंबर असला की तुम्हाला तो पब्लिशर नॅशनल पब्लिशर दाखवावा लागेल। मॅडम डिसाईड कसं करायचं तो नॅशनल आहे की लोकल आहे? पब्लिशर्स डेटाबेस असतो पहा, त्याचं सर्क्युलेशन ऑल ओव्हर इंडिया असेल किंवा इंडियातल्या तुमच्या स्टेटच्या बाहेर असेल तर त्याला लोकल नाही म्हणतायत। हॅलो, बरं, नॅशनल पब्लिशिंग मध्ये ऑथर्स साठी काही हे आहे मॅडम? हा, पहिला जसं एक ऑथर नागपूरला 2 हिमालया आहे. मी सांगते ना, ते तुम्हाला सांगते। इतकं कळलं का तुम्हाला? हिमालया पब्लिशर नॅशनल पब्लिशर आहे, एस्टर्न पब्लिशर इज ऑल्सो नॅशनल पब्लिशर। येस मॅडम, गॉट इट। मॅडम आपलं जसं दासगणू प्रकाशन वगैरे आहे ते नाही, त्याच्या दाखवा काउंट्स ना नाही तुम्ही होणार का? नॅशनल पब्लिशर्स मध्ये, दाखवा ना त्यांना, क्लेम तर करा मार्क। यू कॅन आधीच मॅडम क्लेम द आपण मार्क्स, यू कॅन मॅडम आपण क्लेम द मार्क्स, पण ते मार्क नाही मॅडम, पक्के नका पकडू। नाही आपण क्लेम केला आणि ते ऍट द टाइम ऑफ मग ते जेव्हा सिलेक्शन कमिटी येते त्यावेळेस त्यांनी रिजेक्ट केलं तर 1 वर्षापर्यंत पुन्हा आपल्याला वाट पाहावी लागेल ना? वाट तर पाहावीच लागेल सर तुम्हाला, पण मी काय म्हंटल, तुम्ही क्लेम करा, पण त्याच्या भरोशावरती राहू नका ना। हा ठीक आहे ना मॅडम, क्लेम ठीक करा। आहे. हा, हा आता पहा, मी तुम्हाला पुष्कळदा सांगू का, एवढं डिटेल मध्ये कमिटी पाहत पण नाही। तुमचं IQAC ने जर का त्याला हे केलं असेल ना, तर खूप डिटेल मध्ये नाही जात कमिटी पण। हो का? आणि तुम्ही आणि पण मॅडम 40 म्हणजे 40च नाही करणार ना तुम्ही, 40 जरुरी आहे तर बरोबर आहे, 60 तर करून ठेवाल। बरोबर आहे, बरोबर आहे. आणि मॅडम बुक्स मध्ये जर 2 पेक्षा जास्त ऑथर वगैरे राहिले तिथे पण डिव्हिजन राहील का? सांगते पुढच्या स्लाइड मध्ये सांगते। ठीक आहे, आता ट्रान्सलेशन बाय क्वालिफाईड फॅकल्टीज। आता जर का तुम्ही एका पुस्तकाचं ट्रान्सलेशन करत असाल, ठीक आहे, तर चॅप्टर किंवा एक रिसर्च पेपर तुम्ही ट्रान्सलेट केला तर 3-3 मार्क आहेत। तुम्ही बुक ट्रान्सलेट केलं तरी 8-8 मार्क आहेत। हा नवीन क्रायटेरिया त्यांनी टाकलेला आहे, ट्रान्सलेशन बाय क्वालिफाईड फॅकल्टीज। ओके, यस मैडम। इतना क्लियर है? यस यस मैडम, यस। आगे चलते हैं। ओके, अभी देखिए, अभी आपका UGC केयर लिस्ट में जो जर्नल है उसमें पेपर आ गया। अभी यहाँ पे देखिए, इम्पैक्ट फैक्टर अगर है तो कितने मार्क्स आगे चलेंगे। ओके, देखिए, वो रेफरेड जर्नल है,
और उसको इम्पैक्ट फैक्टर अभी तक नहीं आया है तो 10 में 5 मार्क ऐड करो, और साइंस वाले 8 में 5 मार्क्स ऐड करेंगे। ओके। यस मैडम। दूसरी चीज है, पेपर विथ इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 मीन्स 0 पॉइंट समथिंग में इम्पैक्ट फैक्टर है तो साइंस वालों को 10 मार्क्स ऐड करेंगे, 18 हो जाएंगे। बाकी फैकल्टीज 10 + 10 20 हो जाएंगे। इम्पैक्ट फैक्टर 1 या 2 के बीच में है तो 8 + 15 10 + 15। इम्पैक्ट फैक्टर 2 से 5 के बीच में है तो 8 + 20 एंड 10 + 20। इम्पैक्ट फैक्टर 5 से 10 के बीच में है उस जर्नल का 8 + 25 10 + 25। ओके। और 10 से ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर है तो 30 विल बी एडेड टू 8 यानी 38 हो जाएंगे, और 30 + 10 दैट इज 40 हो जाएंगे। दैट विल द मैक्सिमम मार्क्स you can score on a research paper published in a journal. Okay. अभी यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने दिया है, सी देर आर सो मेनी इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज आर अवेलेबल। ओके, जैसे कॉस्मोस है, यूनिवर्सल रिसर्च, यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर है, देर आर सो मेनी, IIFS, देन देर आर सम मोर। ओके। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि वेब ऑफ साइंस का जो इम्पैक्ट फैक्टर है थॉमसन एंड रूटर, दैट इज नोन एज ISI इम्पैक्ट फैक्टर, उसी के लिए मार्क्स मिलेंगे, बाकी इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये क्लियरली उन्होंने ये डायरेक्शन में दिया है। इसके ऊपर किसी को कोई ये करना है क्या? यस, ठीक है। समझ में आया ये चीज? यस मैडम। अगर आपका जर्नल स्कोपस या वेब ऑफ साइंस में इंडेक्स्ड है तो ही आपको इम्पैक्ट फैक्टर का जो प्रिविलेज है वो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके। अभी मल्टीपल ऑथर्स, हॅलो 2 ऑथर्स जो है, हॅलो अभी देखिए मॅडम, एक इन्होंने विचारायचे बहुत, होते. हाँ हॅलो मॅडम, आता खूप सारे असे जर्नल्स येतात त्याच्यामध्ये पेअर रिव्ह्यूड म्हणून लिहिलेले राहतात, तर मग मॅडम हाँ, त्याचे मार्क्स नाही घ्यायचे का? त्याचे पीयर रिव्ह्यूड वाले घ्यायचे तुम्ही, फक्त मग पण त्याच्यात फक्त 8 मार्कच काउंट करायचे का त्याच्या? हो सायन्स वाल्यांकरता 8च मार्क मिळतील म्हणजे आणि एक्स्ट्रा जसे तुम्ही +5 +10 +15 ते ऍड नाही करता येणार त्याच्यात? ते नाही ऍड करता येणार तुम्हाला। ठीक आहे मॅडम, ठीक. ओके, थँक्यू. जर का ते स्कोपस जर्नल असेल आणि वेब ऑफ सायन्स असेल तरच ऍड करता येतील, नाहीतर नाही करता येतील। अदरवाइज डायरेक्टली फक्त 8 मार्क घ्यायचे. हो, ठीक आहे मॅडम, ठीक. ओके, 8 थँक्यू. मार्क घ्यायचे आणि ते जर का पीयर रिव्ह्यूड असेल हा. तर 5 मार्क त्याच्यात ऍड करायचे, म्हणजे 13 घ्यायचे। मॅडम एक प्रश्न विचारू का? सॉरी पण एक प्रश्न विचारू का? जसं माझा सब्जेक्ट जर इलेक्ट्रॉनिक्स असेल आणि माझं एज्युकेशन मध्ये जर पेपर पब्लिश असतील पीयर रिव्ह्यूड, विल इट बी एक्सेप्टेड? नाही नाही ना? नाही, म्हणजे रूल प्रमाणे नाही, पण कमिटीने जर का काही तुम्हाला ब्लेसिंग्स असतील कमिटीचे हा. आणि त्यांनी जर का केले तर मग गप्प बसून जायचं। पण ठीक आहे ना? मॅडम असेल तर मग नाही, पहा प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी रिलिव्हंट सब्जेक्ट टाकलेला आहे। आता पहा, सपोज तुम्ही नेट पास नाहीये, तुम्ही गांधी अँड थॉट मध्ये PhD केली आणि तुम्ही लायब्ररी सायन्स मध्ये जॉईन करता म्हणताय, तर तुम्ही एलिजिबल कसे होणार? नाही, पीएचडी तर खूप मोठा हा, विषय होऊन जातो. आणखीन एक गोष्ट, तुम्ही तुमच्या विषयाशी जोडून काही करता, ठीक हा आहे, हा तर ते करू शकता तुम्ही। हा मॅडम, म्हणजे विषयाशी जोडून इंटरडिसिप्लिनरी जे आहे ना, चालेल ना? हा इंटरडिसिप्लिनरी काही असेल ना तुमचं, जसं आता मी एक उदाहरण सांगते माझ्या पाहणीतलं, की यूज ऑफ क्लासिकल डान्सेस, यूज ऑफ इंडियन क्लासिकल डान्सेस इन सोशल वर्क हा हा किंवा इन मेडिसिनल थेरपीज। हा. तर आता याच्यामध्ये 2 गोष्टी आल्या ना, परंतु तुमचा विषय आहेच ना तिथे, तसे पेपर्स कन्सिडर होतील। येस मॅडम, तेच. ओके ना. ओके, ठीक. हा मॅडम, चलायचं थँक्यू. पुढे। येस मॅडम. मॅडम, नॅशनल हा. पब्लिशर असल्यावर ऑथर्सच्या सिक्वेन्स नुसार डिस्ट्रीब्युशन असतं की थ्रू आउट सगळ्यांना सारखं आता असतं? पहा ना, याच्यामध्ये लाल मध्ये मी जे लिहिले ते वाचा।
आता पहा, एज ऑन टुडे, अभी पीछे का सब भूल जाओ जो मैंने बताया, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर मल्टीपल ऑथर पब्लिकेशन, अभी ये जो मैं अभी बता रही हूँ वो ध्यान में रखिए। इफ द पेपर इज रिटन बाय 2 ऑथर्स, तो अगर आपको 10 + 5 पीयर रिव्यू के ऐसे 15 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 15 का 70% दोनों को मिलेगा। ये समझा सबको? येस मॅडम. हाँ, मोर देन 2 ऑथर्स है, मतलब 3 ऑथर का पेपर है, तो देखिए 70% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट प्रिंसिपल करस्पॉन्डिंग ऑथर and 30% of total value of application for each the joint authors. अभी यहाँ पे आपका जो दिमाग में फिक्स्ड है ना कि 70% पहले ऑथर को मिलेगा और दूसरे ऑथर को 30% मिलेगा, तीसरे ऑथर को भी 30% मिलेगा, ऐसा ही उन्होंने अभी किया है। समझा? येस मॅडम. इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ये शब्द नहीं है अभी यहाँ। मीन्स मैडम अगर 10 मार्क्स लेने हैं तो 7 फर्स्ट ऑथर और अदर्स ऑल विल हैव 3 मार्क्स। 3 मार्क्स। या ये क्लियर कर दिया अभी उन्होंने। वो जो कंफ्यूजन था, जो लैक्यूनास थे पहले डायरेक्शंस के, वो उन्होंने उसमें एक लैक्यूना ये था थॉमसन रूटर। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं बोस्टन में गई थी पेपर प्रेजेंट करने के लिए, एक कॉन्फ्रेंस था, ओके। तो वो कॉन्फ्रेंस में मुझे जाने के लिए आने के लिए 1.25 लाख खर्चा हुआ, उसमें से 70,000 रुपीज यूनिवर्सिटी ने मुझे दिए थे, राइट। लेकिन बाकी का खर्चा मैंने बोन किया। लेकिन उसके लिए मुझे मार्क्स कितने मिले, वो बहुत अच्छे पब्लिशर ने पब्लिश किया था कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में, तो मैंने 10 मार्क उसके लिए ले लिए, ठीक है, 10 मार्क लिए। और एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस थी, नेशनल नहीं स्टेट लेवल, वर्धा में, वहां पे गई, वहां पे मेरा फुल पेपर कॉन्फ्रेंस में आया, उसमें भी मुझे 10 मार्क्स मिले। बताइए, तो पहले के जो गाइडलाइंस थे ना उसमें कुछ लैक्यूनास थी, मतलब वो वर्धा का पेपर इक्विवेलेंट हो गया मेरा बोस्टन के पेपर से। तो ये सब चीजें जो थी वो सब सजेशंस गए उनके पास में और उन्होंने उसको और टाइट किया। और एक चीज मैं बताती हूँ कि जैसे यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर है UIF, है ना, तो अभी जो यहाँ से नांदेड़ से औरंगाबाद से कुछ जर्नल्स पब्लिश होते हैं हमारे विषय के, तो वो यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर है। तो उसके इम्पैक्ट फैक्टर कैसे है कि पांच इम्पैक्ट फैक्टर, और मेरा एक पेपर स्कोपस में है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 0.1 है, ओके। यू कैन नॉट कंपेयर दिस 5 विथ द स्कोपस 0.1। लेकिन दूसरा जो आदमी है उसका वो UI 5 है करके, उसने क्या किया 25 पॉइंट्स और ऐड कर के लिए, मतलब 35 उसके पेपर को हो गया। और मेरा जो स्कोपस का पेपर है तो उसको <<1 है, तो मुझे 10 + 10 20 मिले, यानी सब स्टैंडर्ड पेपर को आपको 35 मिल रहे हैं, बराबर है, ठीक है। देर आर सम क्वेरीज इन द चैट बॉक्स, हम बाद में देखेंगे। ये क्लियर हो गया, हम आगे चलते हैं। येस आगे मॅडम. भी बहुत है और टाइम रन हो रहा है, आपका एग्जाम भी है शायद आज। अभी देखिए ये उन्होंने नया डाला है, जैसे क्रिएशन ऑफ ICT मेडिएटेड टीचर लर्निंग पेडागोजी एंड कंटेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव कोर्सेस एंड करिकुला। देखिए इनोवेटिव पेडागोजी मतलब आप कुछ बोर्ड ऑफ स्टडीज में कुछ प्रस्ताव देते हो, उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए आपको 5-5 मार्क्स मिलेंगे। डिजाइन ऑफ न्यू करिकुला एंड कोर्सेज के लिए 2-2 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे मुक्स दिया है C कैटेगरी में। देखिए मुक्स मीन्स मुक्स के जो प्लेटफॉर्म्स है वो अलग है, ठीक है। स्वयं वाले जो है उसमें आपका कोई कोर्स चल रहा है 4 क्वाड्रेंट का, तो आपको 20-20 मार्क्स मिलेंगे। मुक्स में अगर आप कंटेंट दे रहे हो, जो 4 क्वाड्रेंट का किसी का कोर्स है, पर मॉड्यूल पर लेक्चर 5-5 मार्क्स मिलेंगे। आप उसमें सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो
पीयर रिव्यू में रिव्यूअर हो, एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट में तो 2-2 मार्क मिलेंगे। आप पूरा कोर्स कोऑर्डिनेट कर रहे हो 4 क्रेडिट का मुक्स का, तो 8-8 मार्क्स आपको मिलेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे डी पॉइंट है ई कंटेंट, ठीक है। तो एक मैडम ने मुझे क्वेश्चन पूछा था ना कि मैंने खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाया है मूडल पे, मैं मेरे बच्चों के लिए ये करती हूँ, तो आपका मार्क्स यहाँ पे क्लेम करना है आपको डी में, सी में मुख स्वयं, डी में आप जो भी कर रहे हो आपके बच्चों के लिए, ई बुक लिख रहे हो, ठीक है, आपका ई बुक पब्लिश हो गया तो आपको 12-12 मार्क मिलेंगे। ई कंटेंट 4 क्वाड्रेंट्स में तो एक मॉड्यूल किया है तो 5-5 मिलेंगे। गॉट द पॉइंट मैडम, जिन्होंने प्रश्न पूछा था? मैडम पर ये कॉलेज और पर्सनल तो डिपार्टमेंट नहीं रहेगा ना, ये तो मुक्स में जाना चाहिए ना, म्हणजे प्रॉपर त्याला ऑथेंटिकेशन मिळालं पाहिजे ना, जे ई कंटेंट आहे त्याला. हे पहा मी तुम्हाला सांगते, मुक्स साठी त्यांनी सी दिलेला आहे. मुक्स सारखे पण पहा, मुक्स सारखे बाकी पण प्लॅटफॉर्म्स आहेत, त्याच्यामध्येही तुम्ही जर का केलं, आता मुक्सचे कोर्सेस, मुक्स स्वयंचे कोर्सेस कसं आहे, क्लाउड बेस्ड कोर्सेस, तर स्वयंला रेकग्निशन यूनिवर्सिटी ने दिलेला है। हर सिलेबस में आपने लिखा है कि मुख स्वयं का 4 क्रेडिट का कोर्स आप करके आए तो आपको एक पेपर नहीं देना पड़ेगा। गॉट द पॉइंट? परंतु त्याच्या व्यतिरिक्तही तुम्ही जर का काही कंटेंट डेव्हलपमेंट करताय, ई बुक स्वतःच्या नावाने छापताय किंवा एखाद्या ई बुकचं, इफ यू आर द एडिटर ऑफ वन ई बुक, ओके, तो वो मुक्स में ना रहते हुए भी अगर आप वो दिखाते हो कि दिस इज माय कंटेंट क्रिएशन, तो यू कैन क्लेम द मार्क्स। समझ में आया? ओके क्लियर? मैम, ओके हाँ, क्योंकि ओके मैम। उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है, देखिए, दिस इज फॉर मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस मुक्स, ओके। और हमारे यूजीसी ने स्टैंडर्डाइज कौन से प्लेटफॉर्म की किया है? स्वयं कोर्सेस को किया है, राइट। ये ई कंटेंट डेवलपमेंट है। अगर आप हार्ड कॉपी में बुक नहीं छापते हो लेकिन आप ई बुक आपका अमेजोन पे आ रहा है, ओके, तो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके लिए। सो दिस इज ओनली फॉर प्रमोटिंग ई कंटेंट, नथिंग एल्स। अभी हम आते हैं 4th क्राइटेरिया फॉर रिसर्च स्कोर। मुझे कंप्लीट करने देंगे मैडम, प्लीज? ओके मैम। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप मुझे पूछिए, नहीं तो मेरा प्रेजेंटेशन पूरा नहीं होगा। ओके, देखिए, पहला क्राइटेरिया क्या था? फर्स्ट क्राइटेरिया क्या था आपका? रिसर्च पेपर्स। दूसरा क्या था? बुक्स एंड चैप्टर इन बुक्स एंड ट्रांसलेशंस। तीसरा क्राइटेरिया क्या था? क्रिएशन ऑफ आईसीटी मेडिएटेड टीचिंग लर्निंग। उसमें ई कंटेंट आया, बुक्स आया। उसके बाद में रिसर्च एंड कंसल्टेंसी इज द 4th क्राइटेरिया। उसमें देखिए, एमफिल एंड पीजी डिसर्टेशन डिग्री अवॉर्डेड, ये भी एक क्वेश्चन था किसी का, राइट। पीजी डिसर्टेशन, अभी देखिए, पीजी प्रोजेक्ट इज डिफरेंट, पीजी डिसर्टेशन इज डिफरेंट। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में डिसर्टेशन आरआरसी में जाते हैं, सिनॉप्सिस, और वहां से अप्रूव होते हैं, तो वो डिसर्टेशन है। अगर आपके जो मैडम ने एक ने पूछा था कि हमको तो 12-12 लोगों को गाइड करना पड़ता है पीजी लेवल के लिए, तो अगर वो उसके लिए आरआरसी है और आरआरसी में वो पास होके फिर काम शुरू होता है, ऐसी कोई सब्जेक्ट्स में प्रोविजन है तो ही आपको यहाँ पे मार्क्स लेने हैं, अदरवाइज नहीं लेने। सिंपल प्रोजेक्ट वर्क्स पीजी के लिए नहीं लेने हैं। लेकिन एमफिल डिग्री आपके अंडर में आती है तो 2-2 मार्क क्लेम कर सकते हो। थीसिस सबमिटेड स्टेज में है तो 5 मार्क, और इफ द पीएचडी इज अवॉर्डेड देन 10 मार्क्स आप हर पीएचडी के लिए ले सकते हो। रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए देखिए, रिसर्च प्रोजेक्ट ऑनगोइंग के लिए मार्क नहीं है जो अभी तक थे। अगर आपके असेसमेंट पीरियड में आपका कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग है, यू कैन नॉट क्लेम द मार्क्स इन द न्यू सिस्टम। सिर्फ कंप्लीट होने के बाद में उस असेसमेंट पीरियड में आप मोर देन 10 lakhs के लिए 10 ले सकते हो, लेस देन 10 lakhs के लिए 5 मार्क ले सकते हो।
और यहाँ पे भी देखिए उन्होंने ऑनगोइंग के लिए, सॉरी मैं वो गलत बोली, ऑनगोइंग के लिए भी आपको 5 और 2 मार्क है, ठीक है। मार्क्स यहाँ पे ऑनगोइंग के लिए कम किए हैं, आधा आधा कर दिए उन्होंने। और यहाँ पे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट्स का जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर होता था उसको ही मार्क्स होते थे। अभी को इन्वेस्टिगेटर है सॉरी, को इन्वेस्टिगेटर है, दे वुड गेट 50% ईच, ठीक है। जॉइंट प्रोजेक्ट्स है तो जॉइंट सुपरविजन है, अगर सुपरवाइजर है और को गाइड भी है तो दे बोथ विल गेट 70% ऑफ द टोटल मार्क्स ईच। आगे चलते हैं। हाँ, पेटेंट्स एंड पॉलिसीज, अगर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट से या आप कोई पेटेंट फाइल किए हो तो इंटरनेशनल लेवल का पेटेंट है तो 10-10, नेशनल लेवल का है तो 7-7, और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स कुछ निकलते हैं आपके रिसर्च से, इंटरनेशनल लेवल का पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनता है तो 10-10, नेशनल लेवल का है तो 7-7, और स्टेट लेवल का है तो 4-4। और आपको अवार्ड्स और फेलोशिप्स मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल तो 7-7 और नेशनल लेवल तो 5-5। ओके, तो ये उन्होंने दिया है पेटेंट्स, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फेलोशिप का एक। दिस इज द 5th क्राइटेरिया। अभी मैं 6th क्राइटेरिया बताती हूँ। इनवाइटेड लेक्चर्स, रिसोर्स पर्सन, पेपर प्रेजेंटेशन इन सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, फुल पेपर इन कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स। ओके, अगेन पेपर प्रेजेंटेड and published in proceeding will be counted only once, दोनों में मार्क्स नहीं ले सकते हो आप। अभी यहाँ पे आप देखेंगे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अब्रॉड में 7-7, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विद इन योर कंट्री 5-5, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3-3 एंड स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल कॉन्फ्रेंस 2-2, इतने ही मार्क्स आपको मिलेंगे। अभी देखिए, अभी हमने 6 कैटेगरीज देखे रिसर्च स्कोर करने के लिए। ए इनवाइटेड लेक्चर्स, ओके, ये पेटेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, ये 5वां, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी ये 4था, देन क्रिएशन ऑफ आईसीटी ये 3rd क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया जर्नल पब्लिकेशंस, दूसरा क्राइटेरिया बुक्स, चैप्टर इन बुक्स एंड ट्रांसलेशन। ये कितना हो गए टोटल क्राइटेरिया? 6 क्राइटेरिया है जिसमें आप मार्क्स ले सकते हो। अभी देखिए, द कंबाइंड रिसर्च स्कोर फ्रॉम द कैटेगरीज ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड इनवाइटेड लेक्चर्स, रिसोर्स पर्सन, पेपर प्रेजेंटेशन shall have an upper capping of 30% of total research score of the person. अभी देखिए, अगर आपने आपका स्कोर है 100, रिसर्च स्कोर आपने पूरा 6 कैटेगरी में कैलकुलेट किया 100 है, तो 100 में से 30% यानी 30 मार्क ही आप ये कैटेगरी में ले सकते हो। ओके, पॉलिसी डॉक्यूमेंट एंड इनवाइटेड लेक्चर्स, यानी 5 और 6 ये 2 कैटेगरीज में आप 30% से ज्यादा मार्क्स नहीं ले सकते हो। दैट विल बी द अपर कैपिंग। ये समझ में आया सबको? हॅलो, ये समझ में हॅलो. आया? हाँ Yes. मॅडम. हा मॅडम, मला विचारायचं होतं. Yes, madam. आपलं 5 + 6 मिळून जर आपले 15च मार्क होत आहेत, तर मग मॅक्सिमम 15च घेता येईल ना आपल्याला? नाही नाही हॅलो. नाही तसं तसं नाहीये. 5 आणि 6 या कैटेगरी मध्ये, सपोज तुमचा टोटल स्कोर झाला 100, हाँ, अभी ध्यान से सुनिए, आपका टोटल सब 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 मिला के आपका रिसर्च स्कोर आ रहा है 100। हाँ, पूरा लेकिन 1 से लेके 6 तक के मिला के मैडम? हाँ, 1 से लेके 6 तक मिला के आपका टोटल स्कोर आ रहा है 100। ओके, हाँ,
लेकिन उसमें से 50 स्कोर आपका 5 और 6 में है, हाँ, तो 50 का 30 हो जाएगा, 50 का मैक्सिमम 30 हो जाएगा। 30% हो जाएगा. हाँ, 50 का 30 हो जाएगा। हा, म्हणजे 50 का 30 मीन्स मॅक्सिमम 30% ही घेऊ शकतो ना मॅडम आपण तिथून. मॅक्झिमम म्हणजे आपला टोटल स्कोर जो आहे ना त्याचा 30% आकडा जो येईल तेवढाच तुम्ही क्लेम करू शकता याच्यात. आणि जसं आपले जसं आपण म्हणत आहे की +5 +6 मिळून आपले माझं एक मॅक्सिमम शांत 30 बोलणे. मार्क नाही झाले तरी. काय हॅलो 30 मॅडम, मार्क्स माझे नाही झाले 5 तर plus वेल अँड गुड. 30% नाही झाले तर वेल अँड गुड. 20 झाले हा, त्या हा. 2 कॅटेगरी मध्ये तर 20च क्लेम करायचे. 20च घेता येईल ना. हा हो, हा. आणि मॅडम, ते आणि ते वाटून नाही मिळत. याच्यातही काही याच्यात जसं मल्टिपल ऑथर राहतात, आपण जसं पेपर पब्लिक याचं प्रेझेंटेशनचे घेतो, तर याच्यातही मग डिव्हिजन वगैरे आहे का मॅडम? 70% 30%? पेपर प्रेझेंटेशन साठी डिव्हिजन नाहीये. प्रेझेंट एकच जण करतो ना. हा प्रेझेंट एकच करेल ना. हा मॅडम, हा ते तर आहे फॉरेन मॅडम. कंट्रीज मध्ये आहे 2 ऑथर्स आहेत ना, अर्धा पेपर एक करतो, अर्धा पेपर दुसरा करतो. फॉरेन कंट्रीज मध्ये ही प्रॅक्टिस आहे. हा ठीक है, तब मॅडम, आप आणि प्रेजेंटेशन के भी आणि 7 ले सकते हो इक्वल मार्क्स, लेकिन जनरली आप पब्लिकेशन के लेते हो. कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में पूरा पेपर पब्लिश होता है तो वहां पे 70-30 लगेंगे. पब्लिकेशनच्या सर्टिफिकेट प्रेझेंटेशन जर आलं तर मग पूर्ण मार्क आपल्याला क्लेम करता येईल. पूर्ण मार्क क्लेम करता येईल. आणि सपोज मॅडम, माझे जसं प्रेझेंटेशनचे जे सर्टिफिकेट आहेत, तर हम्म. जसं माझे टोटल मार्क होत आहेत 18 मार्क होत आहेत, तर इथं मग त्याच्या 30% कोपिंग नाही करणार ना, पूर्ण 18 म्हणजे 18 घेता येईल ना पूर्ण मला? 18 घेतील ते. 30च्या हा 30%च्या वरती नाही होत ते. हा हाँ, ते कराल तुम्ही तेव्हा लक्षात येईल. ओके. और देखिए उन्होंने एक और कंडीशन डाली है कि ये जो 6 कैटेगरीज है उसमें एटलीस्ट 3 कैटेगरी में आपके मार्क्स होने चाहिए. ये समझ में आया? यस मॅडम. मिनिमम 3 कैटेगरीज में. अगर कोई बहुत ही स्कॉलर इंसान है और वो कहता है कि मुझे 100 मार्क्स चाहिए ना, तो मैं 25 रिसर्च पेपर्स लिखता हूँ जर्नल्स में, और जर्नल्स के ही कैटेगरी से मेरे पूरे हो जाते. तो ऐसा नहीं है. आपका एटलीस्ट मिनिमम 3 कैटेगरीज में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए. ठीक है, ये तो अपने को पता है कि प्रेजेंटेशन और पब्लिकेशन इसमें से किसी भी एक कैटेगरी में मार्क्स मिलेंगे आपको. ठीक है. अभी डेट ऑफ प्रमोशन जो है, पहले 2 प्रमोशंस आपके डेट ऑफ क्वालिफिकेशन होंगे, लेकिन बाद के जो प्रमोशंस है वो सिलेक्शन से होंगे. डेट ऑफ सिलेक्शन मतलब जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा. सपोज आपका प्रमोशन एसोसिएट प्रोफेसर का 23 में आता है, आपने 6 महीने पहले आप डाल सकते हो. ठीक है, प्रपोजल आप 6 महीने पहले डाल सकते हो. तो आपने प्रपोजल डाला, जैसे अभी 22 में आपने प्रपोजल डाल दिया, 23 में आपका प्रमोशन है. लेकिन किसी कारणवश आपका इंटरव्यू अगर 24 में होता है, सपोज 1 जनवरी 24 को आपका इंटरव्यू ड्यू है, तो आपका ये बीच का पीरियड वेस्ट जाएगा. आपको डेट ऑफ सिलेक्शन जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन से मिलेगा. ठीक है. अभी देखिए, एल्सवियर में पेपर रिव्यूअर आप हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. वैसा कोई क्राइटेरिया रिव्यूअर के लिए रखे नहीं है उन्होंने. ओके. ये एज फार एज महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज कंसर्न, 1 जनवरी 2016 के बाद उन्होंने पीएचडी एमफिल के इंक्रीमेंट्स देना बंद कर दिए, और जिन्होंने लिए हैं उनके ऊपर में भी ऐसा कहा जाता है कि रिकवरी आ सकती है. ओके. सो I'm acknowledging here one of the lecture delivered by Dr. Khushpat S. Jain. Okay, and I had attended that particular workshop on CAS, and he was the resource person over there. And
by attending his lecture, my concept got cleared. Okay, so sincere thanks to this person, and thank you so much. Now you can ask your questions. Thank you so much, madam, once again for such a enlightening session. आता विचारा रे तुम्हाला काय काय विचारायचंय. मॅडम हा, हॅलो. आम्ही म्हणजे आम्ही नागपूरमध्येच राहतो, तर तुम्हाला भेटायला येऊ शकू का? कारण खूप तुमच्याकडे बऱ्याचशा गोष्टी जाणून घेण्यासारखं वाटलं आम्हाला, आणि आम्हाला खूप सारे डाऊट असतात. या ना, यू हॅलो आर वेलकम. मी Yes, कॅम्पसला हॅलो असेल, लायब्ररी would you सायन्स please डिपार्टमेंट. share this presentation? मॅडम थँक्यू. मैडम ये रिकॉर्डिंग में सेव हो ही रहा है, पूरा प्रेजेंटेशन रिकॉर्डिंग में सेव हो रहा है, तो यू विल गेट इट डायरेक्टली फ्रॉम द रिकॉर्डिंग. Okay. Okay, हॅलो madam, मॅडम one question from Ramesh Taikar. हाँ Any marks for reviewing research papers in elsewhere? No marks. Then, मॅडम मला एक क्वेश्चन विचारायचं होतं. आपलं जे बुक चॅप्टर राहतं मॅडम, त्या बुक हा, चॅप्टर मध्ये पण डिव्हिजन आहे का मॅडम? त्याच्यामध्ये हो, जर मोर दॅन इंटरनॅशनल आणि नॅशनल लेवल पब्लिशर. नाही, त्याच्यात मल्टिपल ऑथर राहिले, 2 किंवा 3 ऑथर राहिले, तिथे पण 70-30. 70% बुक्स 70-30. बुक्स मध्ये बुक चॅप्टर मध्ये पण आहे. हा, हो, ठीक आहे मॅडम. सगळीकडे ओके 70-30 केलं. पहिले 70. ते 60-40 होतं. हा, फक्त आपले कॉन्फरन्स प्रेझेंटेशनचे सोडून बाकी सगळीकडे 70-30%. ओके मॅडम. ओके ओके. Madam, any marks for journals, guest editor, especially for conference proceedings? For journal editor, no marks, sir. Okay. मॅडम कॉलेज लेवलला जी आम्ही प्रोजेक्ट घेतो ना, तर कॉलेज लेवलला जर रिसर्च सेंटर असेल आणि तिथे RAC जर असेल, आणि मग ते जर रिसर्च प्रोजेक्ट RAC ला जर पाठवले कॉलेज लेवलला, तर मग काय ते 2-2 मार्क घेता येतील का? हो, घेता येतील. तसं मग डॉक्युमेंटेशन बनवावं लागेल ना, आणि तसं तसं काही. डॉक्युमेंटेशन बनवावं लागेल तुम्हाला. ओके मॅडम, थँक्यू. मॅडम, ऍज अ रिसोर्स पर्सन आपण ते म्हणजे टॉप डिलिव्हर करतोय, त्याला काही मार्क आहेत? ऍज अ रिसोर्स पर्सन कोणत्या टॉपिकवर आपण टॉप देतोय? आहेत ना मार्क्स, शेवटची 6 कॅटेगरी. 6 मॅडम कॅटेगरी मध्ये मार्क आहेत ना त्याला. मॅडम नॅशनल बुक जर पब्लिश असेल तर नंबर ऑफ ऑथर्स नुसार मार्क्स व्हॅरी होतात का, की हो. कॉन्स्टंट एक थ्रू आउट 10 मार्क असतात? हे बघा, नॅशनल लेवल पब्लिशर असेल तुमचा, बुक चॅप्टर साठी म्हणताय का? नॅशनल बुक पब्लिश आहे मॅडम. हा, पण बुक साठी म्हणताय की चॅप्टर साठी बुक बुक म्हणताय? बुक साठी मॅडम. दाखवते मी तुम्हाला. हा, हे बघा, इंटरनॅशनल पब्लिशर आहे तर 12-12, नॅशनल पब्लिशर आहे तर 10-10, अँड इफ इट इज रिटन बाय, म्हणजे तुमचं ऑथर्स जर का जास्त असतील तर 70-30. हे बघा, ओके 70% टोटल व्हॅल्यू ऑफ पब्लिकेशन टू द फर्स्ट ऑथर, 30% ऑफ टोटल व्हॅल्यू ऑफ पब्लिकेशन फॉर ईच ऑफ द जॉईंट ऑथर्स. ओके, ठीक आहे मॅडम. मॅडम एक विचारायचं होतं मला. हे आपण कोविड मध्ये जे वेबिनार्स घेतले, अरेंज केले, आपल्यातर्फे आपण जे अरेंज केले, तर त्याला मार्क्स मिळतील का? मॅडम, यू कॅन क्लेम. क्लेम करू शकतो? हो, क्लेम करू शकता. बाकी त्याला ग्राह्य धरायचं की नाही धरायचं, कारण अटेंडिंग द कॉन्फरन्सला मार्क नाहीच आहेत, पण इफ यू आर द ऑर्गनायझर आणि तुम्ही जर का तिथे रिसोर्स पर्सन म्हणून टॉक दिलंय, तर ते त्यांना पकडावं लागेल. कारण का की आता आपलं जे आहे सिस्टीम 2 वर्ष पूर्ण ती वेबिनार्स वरच होती ना. पकडतील ते मार्क. पकडतील ना? ठीक आहे. जगच बंद होतं तर मग काय करणार? ठीक. हॅलो मॅडम. हा, मॅडम, तुम्ही म्हटलं का आता जर PG आहे कॉलेजला आणि आपण डिझर्टेशन किंवा प्रोजेक्ट देतो मुलांना, तर त्याकरिता कॉलेज लेवल RSC कमिटी मध्ये मग कोण असणार, जसं प्रिन्सिपल अपॉइंट करते तर? तुमची PhD ची RSC कोणती असते? रिसर्च सेंटर. नाही मॅडम, वी आर टॉकिंग अबाउट जर माझ्या कॉलेजमध्ये MSc आहे आणि मी तिथं
हेड आहे किंवा बाकी अजून प्रोफेसर्स आहेत, हा. तर त्यामध्ये ते RSC कमिटी युनिव्हर्सिटीची राहील का असं विचारत आहे. कॉलेज हा, लेवल कमिटी असते सर. युनिव्हर्सिटी कॉलेज लेवल, रिसर्च सेंटरची. कॉलेज लेवल नाही, कॉलेज लेवल युनिव्हर्सिटी नाही ना. हा, नाही. ठीक आहे. मॅडम युनिव्हर्सिटीचं अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर जर असेल, हा सेंटर फॉर रिसर्च अँड हायर लर्निंग, हा तिथे कॉलेज लेवल RSC होते. मग कॉलेज लेवल RSC मध्ये जात असेल तर तुम्ही क्लेम करू शकता. हा तोच म्हटलं रिसर्च मॅडम. सेंटर असेल तर. हा युनिव्हर्सिटीचं अप्रूव्ड जर रिसर्च सेंटर आहे, हा. सेंटर फॉर हायर Then you लर्निंग रिसर्च, then you can claim. मी रिसर्च सेंटर नाही आहे तर ते क्लेम करता नाही येणार ना मग. नाही, नाही मग तुमचं ते युनिव्हर्सिटीच्या RSC मध्ये जायला पाहिजे, जिथे तुमचे PhD सिनॉप्सिस अप्रूव्ह होतात. मॅडम याचा नॅक मध्ये पण बेनिफिट घेता येतील ना मग इन हाऊस प्रोजेक्ट्स म्हणून, पण ते हो डॉक्युमेंटेशन व्हायला पाहिजे. डॉक्युमेंटेशन व्हायला पाहिजे. हॅलो ठीक आहे मॅडम. मॅडम, हा जे तुम्ही 70% 30% म्हणताय मॅडम, ते तर फक्त जर्नल पब्लिकेशन साठीच आहे मॅडम. कुठं पण असं त्याच्यात तर लिहिलं सगळ्यासाठी नाही आहे सर, आहे. सगळ्यासाठी आहे, सगळ्यासाठी आहे ते मॅडम ते तर 70-30%. तसं तर कुठेच मेन्शन नाही केलं आहे ना मॅडम. फक्त ते जर्नलचे जे आहेत पब्लिकेशनचे त्याच्याच खाली तेवढं मेन्शन केलं आहे की फक्त 70 आणि 30% जर्नलच्या याच्यात डिवाइड होईल म्हणून. ते बुक चॅप्टर किंवा सर बुक पब्लिकेशन मध्ये. सर हॅलो. कॅटेगरी हा फर्स्ट मॅडम. आणि 2, कॅटेगरी हा 1 आणि 2 करता आहे ते. हो काय. कारण मॅडम ते आपण त्याच्या खाली लिहिलं आहे ना, ते फक्त ओनली फॉर जर्नलच तर आहे ना मॅडम तिथं, म्हणून मी म्हटलं विचारलं. कुठे ओनली फॉर जर्नल्स आहे? तिथं आहे ना मॅडम 70% 70% आणि 30% ऑफ जर्नल पब्लिकेशन आहे ना मॅडम तिथं, तुम्ही दाखवलं होतं तिथं. कुठे जर्नल पब्लिकेशन आहे इथे तो लिहिलेलं? 70 टोटल पब्लिकेशन फॉर. हे बघा ना मॅडम, हे जसं तुम्ही हे लिहिलं आहे 6 पॉईंट, हे तर फक्त ते जर्नल्सच्याच याच्यात खाली आहे ना मॅडम. अरे सर, हे प्रेझेंटेशन साठी आहे. ठीक आहे मॅडम, ठीक. हे प्रेझेंटेशन पर्पज करता मी जर्नल्सच्या खाली घेतलेलं आहे. हा ठीक आहे इट मॅडम, इज ठीक. ऍप्लिकेबल फॉर बुक्स ऑल्सो. ह्या ठीक आहे पूर्ण मॅडम, ठीक. 1 आणि 2 कॅटेगरी करता ते आहे, म्हणून मी या स्लाइड मध्ये त्याला इन्क्लूड केलं. ठीक आहे मॅडम, ठीक आहे. ओके 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 मॅडम. ओके. अजून प्रश्न आहेत का? विचारा. थँक्यू मॅडम. मॅडम तुमचा नंबर मी शेअर करेल. Thank you, madam. त्यांना काही Thank you, अजून thank you. पर्सनल विचारायचं असेल, म्हणजे जेव्हा हे लोक फॉर्म भरतील तेव्हा अजून डिफिकल्टी येतीलच. म्हणजे मी माझा पर्सनल एक्सपिरियन्स पण सांगते. हो हो त्याच्यामुळे मग आता सध्या तर लक्षात राहते फ्रेश, पण नंतर काही दिवसांनी जर कोणाला परत गरज पडली तर मी तुमचा नंबर थोडा शेअर करेल मॅडम. चालेल ना, चालेल. हा मॅडम नागपूर युनिव्हर्सिटीचा जो प्रोफार्मा आहे तो असेल तर चालेल. नागपूर युनिव्हर्सिटीने कोणताच प्रोफार्मा दिलेला नाहीये. काही युनिव्हर्सिटीनी दिलेलं आहे मॅडम, जसं PBSचा. नाही, PBS चा काही युनिव्हर्सिटीजने दिलेला आहे, पण नागपूर युनिव्हर्सिटीने दिलेला नाहीये. अच्छा. जो UGC गाईडलाईन मध्ये तुम्हाला जसे मार्क दिलेले आहेत ना, तसेच तुम्ही टाईप करा आणि लिहा. अच्छा. कॉलेजेसचा जसं पाहिजे तुम्हाला, तर हिस्लप कॉलेजचा प्रोफार्मा आहे, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सचा प्रोफार्मा बनलेला आहे प्रोफेसर साठी वगैरे. हा हा. आणि हे आता IQAC न ते आपल्याला स्क्रुटिनाइज करून घ्यावं लागेल. येस मॅडम. स्क्रुटिनी करून घ्यावं लागेल. तुमची IQAC बनवून देईल ना प्रोफार्मा तुम्हाला. हा हा हा. हम्म. येस मॅम. ना? हॅलो मॅम. हा जी. मॅम, नॉन ग्रँट अप्रूव्ड टीचर साठी काय हे API स्कोर वगैरे लागेल की? नॉन ग्रांट अप्रूव्ड टीचर साठी लागेल ना सर ओके. API. आता नवीन गाईडलाईन्स मध्ये सगळ्या प्लेसमेंट्स आणि हे सगळ्या होतील? हो, होतील ना, का नाही होणार, ओके. होतील ना. पण हे लागेल तुम्हाला. हा, म्हणजे ऑटोनॉमस जरी असलं तरी सुद्धा UGCचेच क्रायटेरिया यूज होतील त्याला. उलट ओके ओके. ऑटोनॉमस मध्ये किंवा युनिव्हर्सिटी मध्ये UGC ने सांगितलं की याच्यापेक्षा हे मिनिमम क्रायटेरिया आहेत UGC ने दिलेल्या. याच्यामध्ये तुम्हाला अजून स्ट्रिक्ट करायचं तर यू कॅन डू, जसं आमच्या नागपूर युनिव्हर्सिटीने केलं युनिव्हर्सिटी टीचर्स करता. UGC केअर म्हणजे UGC केअर पेअर रिव्ह्यूड काढून टाकलं. ओके. त्याच्यापेक्षा स्ट्रिक्ट करायचं असेल तर ते तुमच्या इन्स्टिट्यूशनला अधिकार आहे. बस दिस आर द बेसिक क्रायटेरिया.
ओके, थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू सो मच मॅडम वन्स अगेन. अजून काही क्वेश्चन्स नसतील आय थिंक. असतील तर मग मी तुमचा नंबर शेअर करेन, देन दे कॅन आस्क यू. चालेल चालेल. मॅडम सगळ्या तीनही सेशनसाठी लॉट ऑफ थँक्स फ्रॉम ऑल द पार्टिसिपेंट्स अँड फ्रॉम UGC HRDC नागपूर ऑल्सो. थँक्यू सो मच मॅडम. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू मॅम. बाय. बाय मॅम. And बाय. all the best for your CAS. Thank you so much, madam. येस. Thank you, ma'am. Thank you so थँक्यू much. मॅडम. हॅव अ नाइस डे. गुड डे. थैंक यू मैम. Thank you. चलिए फ्रेंड्स, अभी आप 5 मिनट का ब्रेक अगर चाहिए होगा, यू कैन प्रोसीड फॉर 5 मिनट्स ब्रेक. आई हैव ओपन्ड द फाइनल एग्जामिनेशन in our Genomio site. You just go through that and you can start your exam. And it is having 30 minutes, 30 questions, 30 marks. येस मॅडम. ठीक आहे. 1 मिनिट मी तुम्हाला शो पण करून देते. फायनल एक्झाम कुठे आहे, कसं आहे, आजच्या डेटमध्ये बघाल. लॅपटॉपवर असाल तर नवीन टॅबमध्ये जिनोमिओ साईट ओपन करा आपली HRDCची. त्यामध्ये आजच्या 26च्या अंडर तुम्हाला 3 गोष्टी दिसतील. एक आहे क्विज फायनल एक्झाम, पोस्टल ॲड्रेस फॉर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन. दिसते, स्क्रीन इज विजिबल. Yes, yes. हाँ, तो देखिए आज के डेट में 26 नवंबर को एक फाइनल एग्जाम दिख रही है आपको. देन पोस्टल एड्रेस फॉर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फीडबैक फॉर्म फॉर पार्टिसिपेंट्स. तो सबसे पहले आप फाइनल एग्जाम पे क्लिक करके एग्जाम स्टार्ट करिए. 30 मिनट्स की एग्जाम है. ऑल द बेस्ट. सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको आ जाएंगे. सिंपल एग्जाम आहे. ठीक आहे. एक्झाम जसं जसं तुम्ही सॉल्व्ह करत जाल आणि सबमिट कराल एक्झाम, तर मला थोडंसं इन्फॉर्म करा, म्हणजे मी इथे ग्रेड्स चेक करते. सगळ्यांचे ग्रेड्स माझ्याजवळ आले की मग आपण एक्झाम स्टॉप करूया. ज्यांची एक्झाम होऊन जाईल, जिनकी एक्झाम हो जाएगी, यू कैन प्रोसीड फॉर फिलिंग अप दीज टू गूगल फॉर्म्स. मॅडम अवेलेबल नाही दिसते मॅडम एक्झाम 26 नोव्हेंबर दिसते. रिफ्रेश करा एकदा साईट. मॅडम लॉग आउट करून लॉग इन करा. हां, एकदा रिफ्रेश करा किंवा लॉग आउट करून लॉग इन करा, येऊन जाईल. आता जस्ट मी ओपन केली ना, त्यामुळे. ओके ओके, आहे मॅडम आली. हाँ आहे. चला सुरू करा. ऑल द बेस्ट. आई एम हियर ओनली. कुछ डिफिकल्टी आती है, आन्सर्स नका विचारू, फक्त दुसरी काही टेक्निकल डिफिकल्टी असेल तर विचारा. मॅडम नेटवर्कचा इश्यू आला तर टाइम एक्सटेंड होईल का? नाही. आणि नाही फक्त का? तुम्ही रिफ्रेश वगैरे करू नका. देवाचं तेच नाव करू. घ्या आणि सगळं ठीक होईल असं इमॅजिन करा. जर काही प्रॉब्लेम आला तर सगळ्यांची एक्झाम झाल्यावर मी तुमच्यासाठी एखादा अटेम्प्ट सुरू करील, जर असं काही एखाद्या व्यक्तीला प्रॉब्लेम आला तर. कारण की कारण सध्या नेटवर्कचा इश्यू येतोय सध्या मी मॅडम. त्याला सिंगल अटेम्प्टच दिला आहे, तर ट्राय टू गिव आंसर्स इन सिंगल अटेम्प्ट ओनली. चलिए स्टार्ट करिए अभी. येस मॅडम, वी आर स्टार्टिंग. येस येस, ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅडम.